ओम थी। शांति। तो वैसे तो आज पता है कि त्योहार चल रहे आजकल भारत में, क्योंकि भारत में जितने दिन उतना त्योहार, और ये त्योहार सारे संगम युग के यादगार हैं। संगम युग में परमात्मा जो जो कार्य करता है उस सभी कार्यों का यादगार ये त्योहार मनाए जाते हैं। और इसलिए त्योहारों में सदा खुशियां रहती हैं ताकि हमारी खुशियां कम ना हो जाए। इसलिए ये संगम युग की यादगार ये त्योहार मनाए जाते हैं। अभी आगामी जस्ट अभी हमने दशहरा मनाया, इसके बाद अब दिवाली आने वाली। ஓம் சாந்தி. பாய்ஜி சொல்றாங்க, பாரதத்துல திருவிழாக்கள் அதிகம். பாரதத்துல எத்தனை திருவிழாக்கள் செலிப்ரேட் பண்றோம், கொண்டாடுறோம். சங்கம யுகத்தினுடைய நினைவு சின்னம் தான் திருவிழா. சங்கம யுகத்தின் யாதுகார் தான் செலிப்ரேட் பண்றோம் திருவிழாவாக. ஒவ்வொரு காரியங்கள் எப்படி ஹாப்பியா செலிப்ரேட் பண்றோம். இப்போ தீபாவளி, அது பக்தரா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், ரெடி ஆயிட்டு புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு பலகாரங்கள், பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஹாப்பியா செலிப்ரேட் பண்றோம். தசரா செலிப்ரேட் பண்றோம், நவராத்திரி எப்படி செலிப்ரேட் பண்றாங்க, பக்தியா இருக்கு. நாலேஜ் இல்ல, ஆனா எப்படி கொண்டாடுறாங்க. இப்படி ஒவ்வொன்றும் சங்கம யுகத்தின் நினைவு சின்னம். இப்பொழுது நமக்கு ஒவ்வொன்றையும் பாய்ஜி புரிய வைப்பாங்க. अगर इन त्योहारों के रहस्य को भी हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत श्रेष्ठ बनेगा, और बाबा के ऊपर हमारा निश्चय बहुत मजबूत बन जाएगा। इसीलिए इस त्योहारों के आध्यात्मिक रहस्य को समझना भी बड़ा जरूरी है। திருவிழாவை பற்றி, ஒவ்வொரு கொண்டாட்டத்தோட ரகசியங்களை பற்றி நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. அதை கொண்டாடுறது ஓகே, கொண்டாடுறதே ஹாப்பியா இருக்கு. ஆனால் தாரணை செய்ய வேண்டும், புருஷார்த்தி ஆக வேண்டும். 5,000 साल पहले कैसे परमात्मा इस धरती पर आया, क्या क्या कार्य किया, और उसके अंदर हमने क्या क्या सहयोग दिया था, उन आत्माओं का जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनने, इन सभी परमात्मा और हम आत्माओं का यादगार ये त्योहार मनाए जाते हैं। भाई जी, 5,000 वर्ष के पहले बाबा ने पांच आया। हजार पहले 5,000 साल पहले मना पिछले संगम युग में हाँ परमात्मा कैसे धरती पर आया, हाँ। कैसे अंधकार से प्रकाश की तरफ परमात्मा ने लेके गया, अनेक हम्म। आत्माओं को विकारों से छुड़ाया, उन सभी के यादगार रूप में ये चाहे रामायण महाभारत, चाहे त्योहार रीति 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 रस्में सारी जो द्वापरिक से लेकर के हम जो भक्ति करते हैं, ये सब परमात्मा ने किए हुए कार्यों के यादगार हैं। எப்படி சிவ பாபா, பரமாத்மா சுயம் பகவான் 5,000 வருடங்களுக்கு முன்னால் போன சங்கம யுகத்துல பாபா வந்தாங்க. பாபா அப்படி கரானே வாழை சலானே வாழை அப்படி செய்பவர் செய்விப்பவர் ஆயிட்டு என்னெல்லாம் செய்யறாங்க, உலகத்தையே பவித்திரமாக்கிடுறாங்க. அஞ்ஞான இருள்ல இருந்து ஞானம் என்ற பிரகாசத்துக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க. பவித்ரதா, சுக்கு, சாந்தி எல்லாமே கொடுத்துடுறாங்க. அதனுடைய அடையாளமாக ராமாயணம் மகாபாரதம் என்னெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. इसलिए इन त्योहारों को समझना हमें बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले फिर अगले 5,000 साल के बाद, अगले कल्प में जो रामायण महाभारत बनेगा, इसी के अंदर हमारा भी यादगार बनेगा। तो इसीलिए हमें इस त्योहारों को समझ करके बाबा के ऊपर बहुत निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय, ये निश्चय बनने का आधार है इस रहस्यों को समझना। திருவிழாவை நாம புரிஞ்சுக்கணும். என்ன திருவிழா கொண்டாடுறாங்க, கொண்டாடுறாங்க, செலிப்ரேட் பண்றது வேற, தாரணை செய்வது வேறு. அப்போ நாம தாரணை செய்ய வேண்டும், எந்த விழாவுக்கு என்னெல்லாம் பண்றாங்க. இப்ப ஆத்மா பரமாத்மா மிலன் இருக்கு. பாபா நம்மள ஞானத்திற்கு, பிரகாசத்திற்கு, தூய்மைக்கு தேவதை ஆக்குறாங்க. அப்ப இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம தாரணை செய்ய வேண்டும். நிச்சயம் இருக்க வேண்டும், பாபாவிடம் நிச்சயம். ராமா கல்யாண்காரி, பாபா கல்யாண்காரி, ஒவ்வொன்றும் நன்மை 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 நிச்சயம் இருக்க வேண்டும். और इसमें से सबसे पहला त्योहार आता है शिवरात्रि। महाशिवरात्रि सबसे पहला त्योहार होता है।
महाशिवरात्रि अर्थात परमात्मा शिव का अवतरण। अगर महाशिवरात्रि ना होती, परमात्मा इस धरती पर ना आता, ना रक्षाबंधन होता, ना जन्माष्टमी होती, ना दिवाली होती, ना नवरात्रि होती, कोई त्योहार नहीं होती। सारे त्योहारों का आधार है महाशिवरात्रि का त्योहार। அனைத்து திருவிழாவுக்கும் ஆதாரம், அனைத்து விழாக்களுக்கும் ஆதாரம் சிவராத்திரி, மகா சிவராத்திரி. மகா ஜோதி சிவ பாபாவே அவதாரம் செய்து இந்த பூமிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு திருவிழாக்களும் செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது. அப்போ ஆதாரம், பவுண்டேஷன் மகா சிவராத்திரி, மகா ஜோதி பாபா வந்து ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க. इसलिए कभी कभी बाबा मुरली में कहता है, शिवरात्रि ही तुम्हारा बर्थडे है, शिवरात्रि तुम्हारा मैरिज डे है, शिवरात्रि ही तुम्हारा सभी सबसे मुख्य त्योहार है, शिवरात्रि ही तुम्हारे लिए दिवाली है। सच्ची दिवाली हमारी शिवरात्रि है। हाँ, बाबा आया हमारे लिए सब कुछ, सभी त्योहार, मुख्य त्योहार वो है। பாபா வந்துடுறாங்க. முக்கியமானது எதுன்னா மகா சிவராத்திரி, மகா ஜோதி வரக்கூடிய சிவராத்திரி, அதுதான் பர்த்டே, நம்மளுடைய ஜென்மதினம். பிராமணன் ஆக்குறாங்க, பரிஸ்தா தேவதி ஆக்குறாங்க. ஜென்மதினம் சிவராத்திரி. தீபாவளி, உண்மையான தீபாவளியும் சிவராத்திரி. क्योंकि द्वापारी के बाद हमने विकारों के वश हो गए, माया के वश हो गए, तो भक्ति के माध्यम से परमात्मा को पुकारना शुरू किया, परमात्मा को ढूंढना शुरू किया। लेकिन तो भी अंधकार बढ़ता गया, समस्या बढ़ती गई, प्रॉब्लम बढ़ते गए, और इतना अंधकार हो गया जो हम स्वयं को सब थक गए। अभी तो पता नहीं है, ये ऐसे ही दुनिया चलेगी, ऐसे ही विकार बढ़ेंगे, हम सब कुछ भूल गए बिल्कुल। और जैसे हम सो गए थे बिल्कुल अज्ञान के अंधकार में, ऐसे समय पर परमात्मा भक्ति का फल देने के लिए, इस रात को दिन बनाने के लिए परमात्मा आता है। और परमात्मा आकर के क्या करता है, ये सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। यही हमारे लिए शिवरात्रि। பாபா வர்றாங்க, பக்திக்கான பலன் கொடுக்கறாங்க. பாபா வந்துடுறாங்க, பக்திக்கான பலன் கொடுக்கறாங்க. பாபா இரவை பகலாக்குறாங்க. பாபா ராத்துக்கோ தீன், இரவை பகலாக்குறாங்க, பக்திக்கான பகல் அப்படி பலன் கொடுக்கறாங்க இல்லையா? அப்ப ஃபுல் வேர்ல்டு என்ன ஆயிடுது, பகலாகி விடுகிறது, சூரிய வம்சம் வந்துடுது. भक्ति मार्ग में जो शिवरात्रि हम मनाते हैं वो शिवरात्रि नहीं, वास्तव में शिवरात्रि वो है जिस दिन 1937 में 36 में परमात्मा अपना परम धाम छोड़ करके नीचे धरती पर आया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, वो है सच्ची शिवरात्रि। तब से शिवरात्रि चालू हो गई। சிவராத்திரி அப்படின்னாலே பக்தியில என்ன பண்றாங்க, ஆனால் உண்மை சத்தியம் நாலேஜ்ல என்ன சொல்லப்படுது, 1937 சிவபாபா பிரம்மபாபா உடல்ல அவதாரம் பண்றாங்க. பரந்தாமத்துல இருந்து சிவபாபா பிரம்மபாபா உடல்ல அவதாரம் பண்றாங்க. அதுதான் சிவராத்திரி. हमारे लिए उसी दिन शिवरात्रि शुरू हो गई जिस दिन हमने 7 दिन का कोर्स किया, परमात्मा का सच्चा ज्ञान हमें मिला। हमारे लिए सच्ची शिवरात्रि उसी दिन से चालू हुई। நம்மளுடைய சத்தியமான உண்மையான சிவராத்திரி சிவபாபா பிரம்மபாபாக்குள்ள அவதாரமாகி நம்மை பாபா பிராமணனாக்குறாங்க இல்லையா? இதுதான் உண்மையான சிவராத்திரி. तो परमात्मा आकर के क्या करता है, सभी के अंदर जो विकारों का जहर है, काम क्रोध का जहर है, ये सब क्या करता है, पी लेता है। और सभी को ज्ञान अमृत दे करके सभी को क्या बनाता है, अज्ञान निद्रा से जगाता है। इसीलिए शिवरात्रि में जागरण का प्रथा भी चलती है। சிவராத்திரி அப்படின்னாலே விழித்திருக்கிறார்கள். சிவராத்திரிக்கு விழித்திருக்கிறாங்க. ஏன் விழித்திருக்காங்க? அஞ்ஞானத்துல இருந்து ஞானம் என்ற விழிப்பு வர வேண்டும். அஞ்ஞான உறக்கத்துல இருந்து, கும்பகர்ண உறக்கத்துல இருந்து ஞானம் என்ற விழிப்பு வர வேண்டும். அதான் சிவராத்திரிக்கு விழிச்சிருந்தா முக்தி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. शिवरात्रि में उपवास भी करते, उपवास मतलब मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये है सच्चा हमारा उपवास। जिस दिन से हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया, पर बुद्धि से उसके पास रहना शुरू किया, वो हमारा सच्चा उपवास शुरू हुआ। நாம விழிச்சு இருக்கணும், ஞானத்துல இருக்கணும், விரதம் இருக்கணும், பாபா நினைவிலேயே இருக்கணும், பாபா நினைவிலேயே இருக்கணும்.
शिवरात्रि में व्रत भी लेते हैं, व्रत लेते हैं। व्रत लेना अर्थात प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा कौन सी? पवित्रता की प्रतिज्ञा की, शुद्ध खान पान खाने की प्रतिज्ञा की। इसीलिए शिवरात्रि के समय प्रतिज्ञा भी करते हैं। तो ये हमारी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा। और जितनी हमारी संगम युग में हम उपवास, मतलब जैसे उपवास में लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कुछ चीज खाते भी नहीं। कहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं, वो थूक भी अंदर नहीं लेते हैं। इतना जितना हम संगम युग में बाबा के पास बिल्कुल संकल्प से, मन से, मनसा वाचा कर्म से निरंतर उसके साथ रहेंगे, उतना हमारा उपवास। और जितना संगम युग में हम ये सब करते, उतनी भक्ति मार्ग में हमारी यादगार बहुत अच्छी बन जाती है। பக்தியில கூட நம்முடைய நினைவு சின்னம் எப்படி இருக்கு? பக்தியில விழிச்சிருக்காங்க, நாம ஞானத்துல இருக்கணும். பக்தியில விரதம் இருக்கிறாங்க, நாம பாபா நினைவுல இருக்கணும். பக்தியில் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க, நாம உறுதிமொழி எடுக்கணும். பவித்திரமாக இருப்பேன் என்று உறுதிமொழி எடுக்கணும். அவங்க என்ன விரதம் இருக்கிறாங்கன்னா, தண்ணீர் குடிக்காம, பால் குடிக்காம அப்படிலாம் ரொம்ப அந்த 5 கால பூஜை பார்த்துட்டு மறுநாள் காலையில சாப்பிடணும் அப்படிலாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. நாம உறுதியாக இருக்க வேண்டும். पवित्रता। और बलि भी चढ़ाते। बलि चढ़ाना अर्थात हमारे अंदर का अभिमान, हमारे अंदर का मैंपन, पूरा बाबा कराता है, बाबा ने कराया, मैं कुछ नहीं हूं। ये इस तरह से ये हमारे अंदर नम्रता, निरहंकारिता, ये है असली बलि। और जितना ये बलि चढ़ाएंगे हम, बिल्कुल बाबा मय हो जाएंगे। बाबा ही कराता है, बाबा ही मेरा बैकबोन है, उतना बाबा हमारे हमारे लिए प्रसन्न हो जाता है। ये असली बलि। பாபா நம்ம கிட்ட மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. பாபா நம்மிடம் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அப்போ நாம உண்மையாக பாபாவுடைய நினைவிலிருந்து நாம அப்படி இருக்கணும். நாம பாபா கிட்ட ஃபுல்லா உடல், மனம், பொருள் அனைத்தாலும் பாபான சமர்ப்பணம், அர்ப்பணம், பலியாக வேண்டும். उसके बाद बेर भी चढ़ाते हैं। जो बेर है, बेर मतलब वो जो एक पेड़ होता है, बेर बोलते हैं। तो बेर मतलब आपस में जो वैर करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो नफरत घृणा करते हैं, उस वैर को छोड़ना, ये है बेर चढ़ाना। बेर चढ़ा माना बाई जी? जो एक बेर नाम का पेड़ होता है, उस वो भी ये करते हैं। शिवलिंग के ऊपर हाँ, वो अर्पण बेर करते। चढ़ाते हैं। एक बेर आता है हाँ ना, छोटा छोटा गोल गोल। हाँ। हाँ, बेर அந்த मतलब उसको वैर को हिंदी में वैर बोलते हैं, बेर। बेर आपस ஆஹ் में नहीं रखना, उसको ஆஹ் वो लोगों ने बेर चढ़ाया। அந்த இறைவனுக்கு, சிவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. அந்த 3 இலைகள், மலர்கள் இப்படிலாம் அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அப்படி சிவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்றாங்க. और वास्तव में हमारे अंदर जो भी कुछ, जैसे वो छाछ भी क्या करते हैं, छाछ या छाछ भी डालते हैं शिवलिंग के ऊपर, या दूध डालते हैं, और वो भी पानी मिला करके डालते हैं। तो इस तरह से ये जो भी हमारे अंदर के जो बुराई, जो हमारे अंदर ये संस्कार को छोड़ना, ये वास्तव में ये शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ये शिवरात्रि का त्योहार सबसे ऊंचा त्योहार है। எப்படி அந்த இறைவன் மேல பால் அபிஷேகம் பண்றாங்க, பன்னீர் அபிஷேகம் பண்றாங்க, அந்த இலைகள், மலர்கள் எல்லாம் அவங்க மேல வச்சு அந்த தீபாராதனைலாம் காட்டுவாங்க, அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. அப்படி நாம பாபா கிட்ட அர்ப்பணமாக வேண்டும், உறுதியோடு இருக்க வேண்டும், பவித்திரமாக இருப்பேன் என்று. शिवरात्रि के बाद आता है रक्षाबंधन का त्योहार। शिवरात्रि होता है फरवरी में, उसके बाद आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अर्थात परमात्मा जब भी धरती पर आता है और हमें ज्ञान योग सिखाता है, और साथ में हमारे से सभी को पवित्रता की राखी बांधता है, ये पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता है। और जो ये पवित्रता की मर्यादा की कंगन बांधता है, रक्षा सूत्र बांधता है, उसकी रक्षा परमात्मा करता है। பாபா ரட்சிக்கிறார், பாபா பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார். அப்போ நாம எப்படி இருக்கணும்? रक्षाबंधन का त्योहार। ரக்ஷா பந்தன் அப்படின்னாலே பாபா ராக்கி கட்டி விடுறாங்க. ரக்ஷா பந்தனுக்கு பாபா ராக்கி கட்டி விடுறாங்க. வெற்றி திலகம், ராக்கி, வரதானம், ஸ்வீட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ரக்ஷா பந்தன், பாபா ரட்சிக்கிறார், பாதுகாக்கிறார். அப்ப நாம ஞானம், யோகம், சேவா, தாரணா அந்த அந்த கோட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டும். परमात्मा हमें
खुद राखी बांधता है, और जो ये राखी का बंधन बांधता है, जो भी अमृत उठना, नियम मर्यादा, ये वास्तव में ये धागे हैं। जैसे राखी का धागा एक धागा नहीं होता, अनेक धागों की मिली हुई राखी होती है। तो इसी तरह ऐसे अनेक ईश्वरीय नियम और मर्यादा का कंगन बांधता है, उसी की रक्षा परमात्मा करता है। जो ये राखी नहीं बांधता, अर्थात इस नियम मर्यादा में नहीं चलता, उसकी रक्षा परमात्मा नहीं कर सकता। யாரு பவித்திரமாக இருக்கிறாங்க, அந்த ராக்கி ரக்ஷா பந்தன் பவித்திரதா விரதம் இருக்கிறாங்க, அவர்களை பாபா ரட்சிக்கிறார். और उस समय खर्ची भी देते। खर्ची अर्थात हमारे अंदर जो दुर्गुण है, अवगुण है, वो परमात्मा को हमें खर्ची के रूप में जैसे देना, ये है वास्तविक खर्ची देना। कर्ची माना भाई जी? खर्ची मतलब जैसे वो बहनों को, यहाँ सिस्टम है भारत में, आपकी तरफ तो कम बांधते राखी, लेकिन जब बहन भाई को राखी बांधते हैं तो भाई क्या करता है, कोई ना कोई पैसे दे देता है वापिस में, गिफ्ट में। हम्म बहनों को हम्म पैसे देता था या कोई गिफ्ट देता है। तो बाबा हम्म कहता है मैं ये राखी बांध रहा हूं तुम लोगों को रक्षा करने के लिए, तो तुम्हारे हम्म अंदर जो विकार है, दुर्गुण है, ये मुझे गिफ्ट के हम्म रूप में दो। तो तुम्हारा हम्म स्थूल धन नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर की बुराई यही खर्ची है। हम्म। பாபா நமக்கு ஒண்ணு சிவராத்திரிக்கு பாபா வந்துடுறாங்க, रक्षा சிவராத்திரிக்கு பாபா रक्षाबंधन। வந்துடுறாங்க. அடுத்து ரக்ஷாபந்தன், ராக்கிக்கு பாபா ரட்சிக்கிறார். அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? ராக்கி பவித்ரதா, யாரு பவித்திரமா இருக்கிறாங்க அவங்கள பாபா ரட்சிக்கிறார். அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? குணதாரணை செய்ய வேண்டும், தெய்வீக குணதாரணை செய்ய வேண்டும். அவகுணங்களை பாபா கிட்ட கிஃப்டா கொடுத்துடணும். ராக்கிக்கு அவகுணங்களை பாபா கிட்ட கிஃப்டா கொடுத்துட்டு குணதாரணை செய்ய வேண்டும். और मुख मीठा करना, केवल राखी बांधने से भी नहीं चलेगा। केवल हम यहाँ आए और बाबा के नियम प्रमाण चलने लगे, लेकिन हमने बुराई को दिया नहीं, विकारों को दिया ही नहीं, गिफ्ट दिया ही नहीं, तब भी बाबा हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए हमारे अंदर जो दुर्गुण है, अवगुण है, हमें प्रतिज्ञा रूप में बाबा को देना, तब हमारी रक्षा वो करता है। பாபா சொல்றாங்க அவகுணத்தை நீக்கி விடுங்கள். நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் அவகுணங்கள் இருக்கோ அந்த அவகுணங்களை நீக்கிவிட்டு குணதாரணை செய்யணும். அந்த கெட்டதை பாபாவிடம் கிஃப்டா கொடுத்துடணும். ஸ்வீட் கொடுக்குறாங்க பாபா நமக்கு, வாயை ஸ்வீட் ஆக்கிடுறாங்க, இனிமை ஆக்கிடுறாங்க. அப்ப நாம கூட இனிமையான குணத்தை, இனிமையானவராக தைரியத்தா இனிமை தாரணை செய்ய வேண்டும். साथ में बहने भाई को तिलक लगाते हैं। तिलक अर्थात सदा आत्मिक स्मृति में रहने वालों को ही रक्षा परमात्मा करता है। जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहता, देह भान में रहता है, उसकी रक्षा फिर बाबा नहीं कर सकता। इसलिए खर्ची देना, तिलक लगाना, और केवल राखी के दिन की बात नहीं, हमें जब तक अगली राखी न आए तब तक मेरा तिलक सदा लगा रहे, एक दिन भी तिलक ना मिटे, तब हमारी रक्षा बाबा करेगा। பாபா சொல்றாங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் சிவராத்திரி, இரண்டாவது ராக்கி, மூணாவது திலகம். வெற்றி திலகம் வைக்கிறாங்க பாபா நமக்கு. பாபா வெற்றி திலகம் வைக்கிறாங்க. அப்ப நாம எப்படி இருக்கணும்? ஆத்ம அபிமானியாகி இருக்க வேண்டும், அவகுணங்களை நீக்க வேண்டும். பாபா யாரு பவித்திரமா இருக்கிறாங்களோ, யாரு ஆத்ம அபிமானியா இருக்காங்களோ அவர்களை பாபா ரட்சிக்கிறார். उसके बाद सदा फिर बहने भाई को क्या करते हैं, स्वीट भी देते हैं, मीठा, सदा मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना, औरों के साथ व्यवहार अच्छा करना, तब जाकर के हमारी रक्षा करेगा। तो जब हमारी रक्षा होती है, विकारों से हम बच जाते हैं, तब जाकर के धरती पर कृष्ण का जन्म होता है। எப்போ நாம அப்படி பவித்திரம் ஆயிடுறோமோ கிருஷ்ண ஜெயந்தியே வந்துடுது. கிருஷ்ண ஜெயந்தி. जन्माष्टमी के, राखी के बाद 8 दिन के बाद आते हैं ஆஹ் जन्माष्टमी। पहले पहले शिवरात्रि, दूसरा राखी, तीसरा राखी, कृष्ण जयंती. हाँ, उसके बीच में भी एक हमारा ये भी होता है, बीच बीच में हमारा देश का भी है, देश का भी इसके अंदर शामिल है, ये भी एक त्योहार हाँ है। तब हम क्या हाँ होते हैं, राखी बांधते हैं, तब हम आजाद हो जाते हैं।
आजाद हम्म। मतलब विकारों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए आजादी का त्योहार भी हम मनाते हैं। पंद्रह கிருஷ்ண अगस्त ஜெயந்தி. ஆஹ் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடுறோம். அப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சிவன் வந்துடுறாங்க, சிவனுடைய அவதாரம். அடுத்து ராக்கி, ரக்ஷா பந்தன். அடுத்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி. இதுல என்னெல்லாம் உலகத்துல செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஆனால் தாரணை செய்தால் ரட்சிக்கிறார். அந்த பவித்ரதா, ஆத்ம அபிமானி, குணதாரணை. பாபா ஸ்வீட் கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்வீட் சாப்பிட்டேன் அப்படி கிடையாது. இனிமையானவர் ஆகுறது, குணதாரணை, இப்படி எல்லாம் செய்யறதுனால பாபா ரட்சிக்கிறார். கிருஷ்ண ஜெயந்தி பத்தி அடுத்து சொல்றாங்க. उसके बीच में 15 अगस्त भी आता है ना, 15 अगस्त का त्योहार भी हमारा राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय मना। हम जब राखी बांधते हैं तब जाकर के हम विकारों से मुक्त हो जाते हैं और हम आजाद हो जाते हैं। ये त्योहारों का नाम भाई जी? 15 अगस्त, 15 अगस्त हमारा आजादी, वो भी एक त्योहार ही है हमारे लिए। ஆஹ் 15 अगस्त होता ना स्वतंत्रता का दिन। சுதந்திர. ஓகே, சுதந்திர தினம் செலிப்ரேட் பண்றோம் நாம. அந்த சுதந்திரம் राखी அப்படிங்கிறது के बाद वो बीच में आ जाता है। ஆஹ் ராக்கிக்கு அப்புறம் சுதந்திர தினம், அதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி எப்படிலாம் जब வருது. हम राखी बांधते हैं, प्रतिज्ञा ஆஹ் करते हैं, मुख मीठा करते हैं, तब जाकर के हम विकारों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे உம் यहाँ अंग्रेजों से मुक्त हो गए, वहां विकारों உம் से मुक्त हो जाते हैं, सच्चिया में உம் आजादी मिल जाती है। உம் எப்படி பாருங்க, ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து விடுதலை அடைஞ்சோம். ஆங்கிலேயர்கள்ட்ட இருந்து நாம பந்தன் முக்து விடுதலை அடைஞ்சோம். அப்படி நாம சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறோம், சுதந்திரம் ஆகுறோம். நாம விகாரங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து பவித்ரதா இருக்க வேண்டும். பவித்ரதா, சுதந்திரதா, पवित्रता, சுதந்திரதா. क्योंकि इतना दिन हम विकारों के, जैसे अंग्रेजों के अधीन थे। हाँ, तो बापूजी ने क्या किया, स्वतंत्र दिना ये करने के लिए बहुत सारी दांडी यात्रा। इसीलिए बापूजी का भी, बापूजी का लक्ष्य था महात्मा गांधी का, कि मैं इस भारत को स्वतंत्रता के बाद राम राज्य लाऊंगा। तो वास्तव में राम राज्य तो आए नहीं। तो बापूजी का, बापूजी अर्थात शिव बाबा, उस जो स्वप्न था उसको, अधूरा स्वप्न को पूरा करने के लिए ऊपर से आता है और हमारे से राखी बंधवाता है, प्रतिज्ञा कराता है, तब विकारों से आजाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। நாம எப்போ சுதந்திரம் ஆகுறோமோ, பவித்திரமாகுறோம். சுதந்திரம் அதுதான்னு சொல்லப்படுது. எப்படி ஆங்கிலேயர்கள் கிட்ட இருந்து விடுதலை அடைகிறோம், அப்படி விகாரங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைந்து பவித்ரதா, பவித்ரதா இருந்தால்தான் சுதந்திரதா என்று சொல்லப்படுது. அதுதான் ராம ராஜ்யம். அத பாபா ஸ்தாபனை செய்கின்றார். और जो इस, जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने मदद की, और वो फ्रीडम फाइटर हो गए, तो इसी तरह परमात्मा इस कार्य में जो जो मददगार बनेंगे, विकारों से, विकारोपी दुश्मनों को भगाने के लिए मददगार बनेंगे, वो फ्रीडम फाइटर आता, तो वही भविष्य में क्या करते हैं, जैसे उन्होंने वही राज्य किया उन्होंने, तो इसी तरह वही आत्माएं सतयुग, सतयुग त्रेता में राज्य करते हैं। யாரு அப்படி பவித்திரமாக இருந்து பாபாவிற்கு உதவியாளர் ஆகிறோம், அவங்கதான் சத்தியுகம் திரேதாயுகத்துல ராம ராஜ்யத்துல வரக்கூடியவர்கள். उसके बाद, स्वतंत्रता के बाद आता है जन्माष्टमी। जब जन्माष्टमी अर्थात केवल कृष्ण का जन्म की बात नहीं, अनेक श्रेष्ठ आत्माएं इस भारत में जन्म लेती हैं, अर्थात परमात्मा की बन जाती हैं, सत्यु के लिए तैयार हो जाती है, उसका यादगार ये जन्माष्टमी का त्योहार है। ஜென்மாஷ்டமி, கோகுலாஷ்டமி அப்படிலாம் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ராமராஜ்யம் சுதந்திரம் பத்தி சொல்லிட்டாங்க. ஜென்மாஷ்டமி, கோகுலாஷ்டமி அத பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க, எப்படி பாருங்க, அது ஒரு கிருஷ்ணருக்கான விஷயம் இல்ல. அந்த கிருஷ்ணர் கூட எத்தனை பேர் இருப்போம், என்ன செய்வோம் நாமெல்லாம். கிருஷ்ணருடைய ராஜ்யத்துல கிருஷ்ணர் பிரின்ஸா இருப்பாங்க. அந்த யசோதாமா தேவி இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துரும் இல்லையா, அப்படி கிருஷ்ணரை பத்தி அடுத்து சொல்றாங்க. उसके बाद आता है गणपति का त्योहार। जन्माष्टमी के बाद गणेश का त्योहार आता है। कहते हैं गणेश जी शिव जी के पुत्र थे। हाँ, गणेश जी का सिर क्या क्या शिव जी ने काट दिया और क्या क्या हाथी का लगाया। तो वास्तव में संगम युग के यादगार त्योहार है। விக்ன விநாசக், விநாயகர், கணபதி அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. அடுத்து விநாயகர் சதுர்த்தி வந்துடுது.
விநாயகர் சதுர்த்தி, ஃபர்ஸ்ட் சிவராத்திரி, அடுத்து ராக்கி, அடுத்து சுதந்திரம் சொல்லிட்டாங்க, கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி, ராமராஜ்யம், அடுத்து சொல்றாங்க கணபதி, விக்னேஸ்வரர், விநாயகர் சதுர்த்தி வந்துடுது. तो गणपति अर्थात विघ्न विनाशक बनने के लिए परमात्मा क्या करता, हमारी जो पहली दुर्बुद्धि थी, विकारी बुद्धि थी, आसुरी बुद्धि थी, उसको ज्ञान योग दे करके चेंज करता है। माना हमारी आसुरी बुद्धि को काट करके दैवी ज्ञानी की बुद्धि लगाई। इसका प्रतीक वो शिव जी ने क्या क्या, सिर काटा करके, सिर मतलब ये कहीं प्रैक्टिकल सिर को नहीं काटा, लेकिन बुद्धि को चेंज किया। அப்போ நாம என்ன பண்றோம்? டிவைன் புத்தி, தெய்வீக புத்தி, டிவைன் புத்தி கொடுக்குறாங்க பாபா. விநாயகருக்கு அந்த தலையை கட் பண்ணிடுறாங்க, யானை தலை வச்சிடுறாங்க. விக்னேஸ்வரர் கணபதிக்கு தலையை கட் பண்ணிடுறாங்க, சிற்காட்டுக்கிய தலையை கட் பண்ணிடுறாங்க, யானை தலை வச்சிடுறாங்க. அப்போ நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, புத்தி டிவைன் புத்தியா இருக்கணும், மற்றபடி புத்தியை அர்ப்பணம் செய்து விட வேண்டும். புத்தியை டிவைன் நிச்சய புத்தி, டிவைன் புத்தி ஆக்க வேண்டும். गणपति के एक एक, वास्तव में विघ्न विनाशक बनने के लिए गणपति का एक एक अंग है। उस एक एक अंग के रहस्य को अगर हम जीवन में लाते हैं, तब हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। हम खुद भी अपने जीवन में विघ्न विनाशक बन सकते हैं, अन्य आत्माओं को भी विघ्नों को में हार सकते हैं। कब? जब गणपति का एक एक अंग है, उस अंग के अंदर जो आध्यात्मिक रहस्य है, उसको जीवन में लाने से। இந்த கணபதி, விநாயகர், விக்னேஸ்வரர் இருக்காருன்னா, அப்போ நம்ம புத்தியை டிவைன் புத்தி ஆக்க வேண்டும். இது ஒன்று. அடுத்து சொல்றாங்க அவருடைய அங்கங்கள், கண்ணு, மூக்கு, காது, வாய், இப்படி ஒவ்வொன்றும் இருக்கு இல்லையா, தும்பி, கை, இதெல்லாம் காட்டப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அப்படி நாம கூட எதை, அந்த கண்ணை என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா சிறிய கண்ணா காட்டப்பட்டிருக்கு, காது பெரிய காதா காட்டப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாமே குண தாரணை செய்யக்கூடிய விஷயங்களாக கொண்டு வர வேண்டும். जैसे गणपति को दिखाते हैं हाथी का सिर। हाथी का सिर में बहुत बड़ी विशेषता होती है। हाथी क्या करता है, छोटी सी चींटी से भी डरता है, क्योंकि इसीलिए कान हमेशा हाथी हिलाता रहता है। कान हिलाना अर्थात हमें कोई भी परचिंतन की बातें, निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, उसको सुनना नहीं है। अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, उन बातों को सुनना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, और सुन लेते हैं। जितना दूसरे के दुर्गुण अवगुण को सुनेंगे, हमारे जीवन में विघ्न आएंगे, और खुद हम विघ्नों में है तो दूसरे के विघ्नों को कैसे हार सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। நாம நல்லதே பார்க்க வேண்டும், நல்லதே கேட்க வேண்டும், நல்லதே பேசணும், நல்லதே சாப்பிடணும், நல்லதே செய்யணும், எல்லாமே நல்லது நல்லது, பாசிட்டிவ் 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 அப்படி கொண்டு வந்துடணும். அவருக்கு தலை கூட பாருங்க, யானை தலை காட்டப்பட்டிருக்கு, ஆனால் ஒரு சிறு எறும்பை பார்த்து பயப்படுது. அப்போ நாம கூட நல்லது பார்க்கணும், நல்லது கேட்கணும், நல்லது பேசணும், எல்லாமே பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவை பார்க்க வேண்டாம், கேட்க வேண்டாம். ஏன்னா விக்ன விநாசக் அப்படின்னாலே நெகட்டிவ் இருக்காது, நல்லதுதான் பார்க்கணும் கேட்கணும். और हाथी क्या करता है, हाथी के आंखें छोटी छोटी होती है। वैसे तो हाथी इतना बड़ा है तो आंखें भी बड़ी चाहिए। हाथी की आंखों के अंदर एक विशेषता होती है, हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती है। इसी तरह जो ज्ञान योग के आधार से छोटी छोटी संकल्प, छोटी छोटी बातों को बड़ा समझ करके, हाँ, उसको हम जीवन में धारण करेंगे, तब हमारे जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। और जब हम विघ्नार्ता बनेंगे तो औरों के भी विघ्न खत्म कर सकेंगे। நாம விக்ன விநாசக் ஆகணும். அப்போ யானையினுடைய கண்கள் பாருங்க சிறியதா காட்டப்பட்டிருக்கு. நாம தாரணை செய்யக்கூடிய விஷயங்களை கவனம் கொடுத்து தாரணை செய்து விக்ன விநாசக் ஆக வேண்டும். और दिखाते हैं गणेश जी का माँ का नाम पार्वती। पार्वती अर्थात इस दुनिया से भी ऊपर परम धाम में रहने वाला हमारा परिवार है। जिसको ये भावना रहती है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं उस पार वतन से आया हूँ, जाना भी पार वतन में, तब विघ्न कभी नहीं आएंगे। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, ना मेरी जमीन, ना मेरा घर, ना हमारा शरीर, मैं वतन से आया हूँ, मेरे माता पिता ऊपर रहते हैं। ये भावना से जब चलेंगे, विघ्न हर्ता बन सकते हैं। நாம பரந்தாம
வதனத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், வதனத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், அதாவது பார்வதி, கடந்து இருக்கக்கூடியவர்கள், பார்வதி கடந்து இருக்கணும். இந்த உலகத்தை கடந்து, இந்த உடலை கடந்து பரந்தாமத்தில் வதனத்தில் அனுபவம் செய்ய வேண்டும். और शिव जी, उसका पिता का नाम शिव, शिव मतलब कल्याणकारी। जिसका पिता कल्याणकारी है, उसका कोई अपमान करे, निंदा करे, उसके जीवन में जो कुछ होता है हर बात में कल्याण है। उसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अगर वो सोचता है कुछ होने के बाद भी फिर भी सोचता है, इसका मतलब बाबा के ऊपर विश्वास नहीं। इसलिए जीवन निश्चिंत, हर बात में कल्याण है। निगेटिव बातों में भी कल्याण है, पॉजिटिव बातों में भी कल्याण है। हमारा काम है सदा पॉजिटिव रहना, चुप रहना। हाँ, तब विघ्न हारता बन सकेंगे। नहीं तो आज कईयों को तनाव है, टेंशन है, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो, अरे जो होगा सब अच्छा ही होगा। हम ये ड्रामा का चक्र चक्र हमेशा गोल में घूमता है। वो नीचे उतर भी रहे तो भी कल्याणकारी रहे, चढ़ भी रहे तो भी कल्याण, गोल में हमारा कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हमें सदा निश्चिंत रहना है, तो विघ्नहर्ता बन सकते हैं। நாம சிவஜி கல்யாண்காரி, சிவ் பாபா கல்யாண்காரி, டிராமா கல்யாண்காரி, அனைத்தும் நன்மை நன்மை, பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் நன்மை. பாபா கல்யாண்காரி, டிராமா கல்யாண்காரி. ஆத்மா சோல் சிவ் பாபாவுடைய குழந்தை, சிவஜியோட குழந்தை. சிவ் பாபா ஃபாதர், காட் ஃபாதர், கல்யாண்காரி. அப்ப நமக்கு எல்லாமே நன்மையே நடக்கிறது, அனைத்தும் நன்மைக்கே நடக்கிறது. और उसका भाई था कार्तिकेय। कार्तिकेय अर्थात पवित्र ब्रह्मचारी था। हाँ, जिसका भाई कार्तिकेय है, जिसकी माँ पार्वती है, हाँ, जिसका बाप शिव है, उसके जीवन में सफलता, रिद्धि सिद्धि उसके पीछे अपने आप आएंगी। जिन्होंने पवित्रता को अपना भाई बनाया, जिन्होंने उपराम हो गए, जो कल्याणकारी स्थिति में रहता है, वो हमेशा विघ्नहर्ता रह सकता है। वो उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएंगे, और स्वयं के जीवन में विघ्न नहीं आएंगे। अन्य जिसके संपर्क में आएगा उनको भी वो विघ्नहर्ता बन सकता है। பாபா கல்யாண்காரி, டிராமா கல்யாண்காரி, சிவ பாபா கல்யாண்காரி. பாபா கூட இருக்கிறாங்க, பாபா கூட இருக்கிறாங்க. பவித்ரதா, கார்த்திக் அப்படின்னாலே முருகன், விநாயகர், முருகன் பிரதர்ஸ். அப்ப கார்த்தி அப்படின்னாலே பவித்ரதா, அந்த தூய்மையை தன்னுடைய தன்னுடைய தம்பியாக்கிக்கோங்க, சகோதரன் ஆக்கிக்கோங்க, தூய்மையை தன்னுடையதாக்கிக்கோங்க. அப்போ வெற்றி, ரித்தி சித்தி, வெற்றி. சிவ பாபா கல்யாண்காரி, பாபா கல்யாண்காரி, டிராமா கல்யாண்காரி, பவித்திரதாவை தனதாக்கினால் வெற்றி வெற்றி. इसीलिए उसकी पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि का मतलब वो अगर वो जिसका बाप कल्याण, रिद्धि सिद्धि तो उसके पीछे पीछे अपने आप आ सकते हैं, जीवन में सफलता मिल सकते हैं। इसलिए गणेश के एक एक चीजों में आध्यात्मिकता छिपी हुई है। गणेश का एक पाँव क्या होता है, नीचे होता है, एक पैर ऊपर ऊपर होता है। वो डांस करता रहता है। डांस करना अर्थात अब घर जाना है। उसका पेट बराबर दिखाते, पेट बड़ा अर्थात कोई हमें कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में समा लेना। अब उसके बारे में सोचना भी नहीं, इधर उधर सुनाना भी नहीं, उस बातों को ये करना, तब जाकर के विघ्नहर्ता बन सकते हैं। நாம விநாயகர் போல இருக்க வேண்டும். ரித்தி சித்தி, நமக்கு வெற்றி கிடைச்சிட்டே இருக்கும். பவித்திரதா இருக்கணும், பவித்திரதாவை தனதாக்க வேண்டும். இதுல நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் டான்ஸ் ஆடுறாரு, விநாயகரை ஒரு கால் தூக்கி டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி காட்டப்பட்டிருக்கு. அப்ப நம்முடைய கால்கள் கூட எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஒன்று பரந்தாமத்தை நினைக்கணும், வதனத்தை நினைக்கணும், மனதுல பாபாவை நினைக்கணும். அப்ப நமக்கு வெற்றி கிடைச்சிட்டே இருக்கும். गणेश जी को लड्डू, खास तो लड्डू वाला भोग लगाते हैं। लड्डू वाला बूंदी बूंदिया, छोटी छोटी बूंदियों को इकट्ठा करके उसका एक लड्डू बन जाता है। अर्थात ये लड्डू बूंदी लाल लाल कलर डाल करके लाल वाली बूंदी बनाई जाती है। लाल बूंदी का अर्थात आत्माएं, आत्माएं, छोटी छोटी आत्माएं, जो लाल कलर वाली आत्माएं, एक संगठन बाबा ने बनाया। हर सेवा केंद्र में आने वाले छोटी छोटी आत्माओं की एक लड्डू है। उनके संगठन में हमें बीच बीच में आना। जैसे अगर बूंदी लड्डू से अलग हो जाएगी तो चिटिया क्या करेगी, उसको खत्म करेगी। इसीलिए लड्डू के साथ जो रहेगी, इसी तरह हमें भी रोज सवेरे मुरली सुनने के लिए 1 डेढ़ घंटे के लिए अगर हम संगठन में जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, सारा दिन हम बाहर जाएंगे तो माया हमारे से दूर भागेगी। अगर 15-20 दिन
संगठन से दूर हो जाएंगे तो हमारे जीवन में विघ्न आएंगे, समस्या आएंगी। तो वास्तव में ये है, सदा हमें संगठन के साथ रहना है। 24 घंटे के बाद 1-1.5 घंटे के लिए हमें संगठन में जरूर आना है, तब विघ्नहर्ता बन सकते हैं। நாம விக்ன விநாசகாக வேண்டும். பாருங்க, ஓம் டான்ஸ் சாந்தி ஆடுற மாதிரி சிஸ்டர். காட்டப்பட்டிருக்கு, லட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு. சிஸ்டர் ஓம் சாந்தி. சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள். நம்ம ஊர் லட்டெல்லாம் மஞ்சள் மஞ்சளால இருக்கும், இங்க ரெட் கலர்ல மஞ்சள்லயும் லட்டு. லட்டு இருக்கும், மஞ்சள்லயும் லட்டு இருக்கும். ஏன் பாபா மிலன்ல உங்களுக்கு ஃபேண்டா கலர்ல லட்டு கிடைச்சு பூந்தி கிடைச்சு சாப்பிட்டுருப்பீங்களே? ஆமா, அங்க கிடைக்குது. இங்க சொல்றேன், ஆமா, நம்ம நீங்க தமிழ்நாட்டுல கலர் எல்லாம் போடுறதுதான் உங்க இஷ்டம் தான். எல்லோ கலர் போட்டீங்கன்னா எல்லோ கலர், ஃபேண்டா கலர்னா ஃபேண்டா கலர். நம்ம இஷ்டத்துல தானே பூந்தி கலர் எல்லாமே உருவாக்குறோம். என்ன சொல்றீங்க? तो என்ன? इस तरह அது அது ஓகே தான் சொல்றேன். நான் அந்த பிரதருக்கு சொல்ல, பிரதர் வந்து அவங்க ஊர் லட்டை பத்தி பேசுறாரு. நம்ம ஊர் லட்டெல்லாம் எல்லோ எல்லோவா தான் இருக்கும். ஓகே, இல்ல, தேங்க்யூ. ஃபேண்டா கலர் நாங்க அந்த அந்த கலர் எல்லாம் நம்ம போடுறதுதான். नहीं है, उसका ஓகே कलर तो ஓகே ज्यादा से हम मधुबन में यूज करते हैं ना, वो लाल कलर लगभग होता है, लाल हाँ लाल हाँ कलर की बूंदी बनाते हैं। हाँ, यहाँ बाबा मिलन येलो के वाला लिए कम लाल यूज कलर करते हैं। बूंदी मिला है। हाँ बाबा मिलन का समय लाल कलर बूंदी मिला है। हाँ हाँ। हाँ वो लाल कलर वो आत्मा का प्रतीक, आत्मा का कलर भी लगभग लाल जैसे दिखा था ना, शिव बाबा का भी लाल, हाँ ये उसका हाँ, प्रतीक है। எப்படி லட்டு பாருங்க, ஸ்வீட் காட்டப்படுது. அது ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு தரம் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காது. அதுல இருந்து ஒரே ஒரு துளி கீழே விழுந்தா கூட எறும்பு எடுத்துட்டு போயிடும். அப்படி நாம வந்து தாரணை செய்யக்கூடியவரா இருக்கணும், ஒரு நாள் மிஸ் பண்றவராக இருக்க கூடாது. இந்த பாயிண்ட் हमें எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. हर रोज सेंटर पर जाना है, संगठन के साथ रहेगा। जो संगठन के हम्म साथ ब्रह्मा कुमारीज में आता है तो उनका हम्म। वाइब्रेशन एक दूसरे का तो सारा दिन विघ्न। तो इसी तरह ये सारी चीजें जो भक्तों ने बनाई है उसके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिकता है। அப்படி நாம கூட அந்த குரூப்ல உட்கார்ந்து யோகா பண்ணக்கூடியவங்களா, சேவா பண்ணக்கூடியவங்களா, ரெகுலர் ரெகுலர் ஞானம், யோகம், சேவா, தாரணா, பவித்திரதா அந்த லட்டு போல அந்த செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கணும். ஒரு துளி விழுந்துருச்சு, அதை எறும்பு எடுத்துட்டு போயிடுச்சு, அப்படி ஒரு நாள் அவங்க வரல, அவங்களுக்கு மாயா வந்துருச்சு, அப்படி இருக்க கூடாது. அப்படி சொல்ல வர்றாங்க மாயிஜி. तो इस तरह से ये है विघ्नहर्ता। और ऐसी जो जिसका बाप कल्याणकारी हो, जिसकी माँ पार्वती हो, जिसका भाई पवित्र ब्रह्म ये हो, तो वो आत्मा फिर क्या करते हैं, माया जो चुवी जैसी है, जो कब फूंकर मारते हैं उसके पर हम जीत प्राप्त करते हैं। इसलिए गणेश जी का वाहन क्या दिखाते हैं, चुवा दिखाते हैं। माना ऐसे सूक्ष्म माया के ऊपर भी हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। நாம மாயாஜீத் ஆக வேண்டும். மாயாஜீத் ஆகணும்னா இந்த எல்லாமே சொல்றாரு இல்லையா, சிவராத்திரி, நவராத்திரி, கணபதி, விநாயகர் சதுர்த்தி, கிருஷ்ணாஷ்டமி, இப்படி திருவிழாக்கள் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. நாம தாரணை செய்து வெற்றி அடைந்து தேவத்தை ஆக வேண்டும். उसके बाद आता है जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद हम तैयारी करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि लगभग उससे पूर्व देवियों की ये कर उसे मुझे लगता है कई स्टेट में, मैं भी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में क्या करते हैं नवरात्रि के पूर्व घट स्थापना होता है। घट स्थापना पता नहीं वो साउथ में तो करते हैं कि नहीं। वो क्या करते हैं, जहाँ पूजा करते हैं उसके पास कुछ विभिन्न प्रकार का अनाज होता है, उस अनाज को बोने का दिन होता है और उसको कहते हैं घट स्थापना। और जब बोते हैं फिर उसको 8 दिन तक, हम जब छोटे थे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, हमारे माता पिता ने हमको बताया था कि इसको 8 दिन ला करके क्या करना है, नहा धो करके ला करके कुएं से ताजा पानी लाकर डालना है रोज। वो जो बीज बोए हैं मिट्टी के अंदर वो ये करते थे। और उसके बाद 8 दिन तक रोज पानी माला लगाना है। और तब जाकर के हमारे अंदर जब संगम युग में हमने क्या क्या बीज बोया, मतलब ज्ञान का बीज क्या क्या कान में डाला। जब कान में डाला, स्मृति का रोज पानी दिया, तो वो जीवन में उगा। और वो उगने के बाद हमारे अंदर शक्तियों की जागृति हो गई, हमारे अंदर सहन शक्ति आई, हमारे अंदर परखने की शक्ति आई, सामना करने की शक्ति आई। जब 8 दिन तक, 9 दिन तक हम ये स्मृति का पानी दिया बीज को, तब जाकर के जीवन में उगा और तब शक्तियों की जागृति हुई। और शक्तियों की जागृति होने से क्या हो गया, जो 10वें दिन क्या होता है, विकार रूपी रावण खत्म हो जाता है। उसका यादगार है नवरात्रि का त्योहार।
நவராத்திரிக்கு என்ன பண்றாங்க பாருங்க, அந்த 10 நாளும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. 10வது நாள் தசரா, அந்த ராவணனை எரிக்கிறது, ராவணன் மீது அம்பு எய்கிறது, இப்படி சில இடங்கள்ல சிலது செலிப்ரேட் பண்றாங்க. சிலர் வந்து எரிக்கிறது பண்றாங்க ஒன்று, இன்னொன்று இந்த அம்பு எய்றாங்க அந்த ராவணன் மேல, இந்த இது செலிப்ரேட் பண்றாங்க. இப்ப பாய்ஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு விதை விதைச்சிடுறோம், அது ஆடி மாதமா இருக்கலாம், அல்லது இந்த திருவிழா காலங்கள்ல இந்த முளைப்பாரின்னு சொல்லுவீங்க, அந்த விதை விதைச்சிட்டு தண்ணி தெளிக்கிறது, பாத்துக்கிறது, அப்புறம் அது பாருங்க அது வளர்ந்து நிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நாம கூட பாபா என்ன பவித்ரதா, சகிப்புத்தன்மை, தைரியத்தா, இனிமை, அப்படி என்னெல்லாம் மதுரத்தா, என்னென்ன தைரியத்தா, கம்பீரத்தா குணங்கள் சொல்றாங்களோ அதை தனக்குள் கொண்டு வரணும். அந்த விதை விதைக்க வேண்டும், யோகான்ற பவர் கொடுக்க வேண்டும், நாம நம்ம தேவத்தை ஆக வேண்டும். அததான் நவராத்திரியில அவங்க செலிப்ரேட் பண்றாங்க. அந்த அசுரனை எரிக்கிறாங்க, அம்பு எய்றாங்க, அப்படி செலிப்ரேட் பண்றாங்க அந்த முளைப்பாரி பண்றது. ஆனால் அவங்க ஸ்தூலமா எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க, நம்ம ஆத்மாவிற்கு செய்து ஆத்மாவை தேவத்தை ஆக்க வேண்டும். और जिस दिन दसरा होता है, जो हमने 8-9 दिन से जो पानी डाला था, जो बीज बोया था, उसका उग करके बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको उसी दिन निकाल करके क्या करते हैं, कान में लगाते हैं, या यहाँ टोपी पहनते थे हम लोग, उसके अंदर तोरा की तरह वो लगाते हैं। विजयदशमी मतलब हम विजय हो गए उसी दिन, उसका वो प्रतीक है। விஜயதசமி அப்படின்னாலே வெற்றிக்கான நாள். விஜயதசமி வெற்றிக்கான நாள். அப்படி நமக்கு வெற்றி எப்ப கிடைக்குது, நாம இப்படி ஒவ்வொன்றையும் தாரணை செய்தால் பாருங்க, நாம ஆத்மாவுக்கு செய்து தேவத்தை ஆயிடுறோம். பக்தர்கள் செய்யறாங்க, எப்படி உங்களை விட நல்லா பண்றாங்க அப்படின்னு கூட சில நேரம் தோணும். அவ்வளவு விரதம் இருந்து, இப்ப சொன்னாங்க பாய்ஜி கூட தண்ணீர் குடிக்காம பால் குடிக்காம விரதம் இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி செய்யறாங்க. ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும், பிராமணன் பரிஸ்தா தேவத்தை கண்டிப்பா ஆகல. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு செய்யும் போது, சிவ பாபாவுக்கு செய்யும் போது, ஆத்மாவுக்கு செய்யும் போது தேவதை ஆயிடுறோம். விஜயதசமி வெற்றி கிடைச்சிருது. और खास तो नवरात्रि में झांकियां लगाते हैं देवियों की, तो झांकियों को देखने के लिए, वास्तव में झांकियां, हमें उस झांकियों को देखते हुए भी हम अपने अंदर झांक करके अंतर्मुखी को देखना है कि मेरे अंदर किस प्रकार की ये गुण आए, मेरे अंदर ये शक्ति आई। केवल झांकी देखना नहीं है, लेकिन उस देवी जैसे, शीतला जैसे मेरे अंदर संस्कार आए, सरस्वती जैसे मेरे अंदर संस्कार आए, संतोषी जैसे मेरे अंदर संस्कार आए। और जब ये अष्ट शक्तियां, 9 शक्तियां हमारे अंदर आएगी, तब ही हम विकार पर, संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर शक्तियों की जागृति नहीं है, इसलिए हमें जागरण करना, खास तो इसमें जागरण करते रात के समय, वो देवियों का रात के समय 9 बजे 10 बजे, कहीं तो 12 बजे तक, 1 बजे तक झांके चलते रहते। तो हमें जागरण करना है। जागरण मतलब रात भर जागने की बात नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से हूं, मुझे कहाँ जाना है, वर्तमान समय कौन सा युग चल रहा है, ये समझना अर्थात जागरण करना। और इसका प्रतीक है रात के समय जागरण करके देवियों को बिठाया जाता है। இப்படி பாருங்க, அந்த கொலு பொம்மை வைக்கிறாங்க இல்லையா, ஒவ்வொரு பொம்மையா வச்சிருக்காங்க. அப்படி நாம கூட என்ன பண்ணணும்னா, சரஸ்வதி தேவி போல, லக்ஷ்மி தேவி போல, துர்கா தேவி போல நமக்குள்ள அந்த குணதாரணை செய்வது, நாம அவர்களை போல நாம அவங்கள அந்த விழிச்சிருக்கிறது, அவங்களுக்கு அலங்காரம் பண்றது, பரந்தாமத்தில், இப்ப பார்வதி அப்படின்னாலே பரந்தாமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், இந்த உலகத்தை கடக்கக்கூடியவர் அப்படிலாம் சொன்னார் இல்லையா. இப்படி நாம ஒவ்வொரு குணங்களையும் சக்திகளையும் தனக்குள் கொண்டு வந்து, அப்படி தைரியத்தா வெற்றி தேவி, விஜயதசமி வெற்றி தேவி ஆக வேண்டும். लेकिन अभी मैंने जब दसरा हो गया, उसके बाद एक जगह पर क्लास किया था, क्लास में एक न्यूज दिया था, रावण जला नहीं जिंदा है। तो लोग क्या करते हैं, वो पुतले वाला रावण जलाते, पुतला वाला रावण नहीं, हमारे अंदर के पुराने संस्कार, हमारे अंदर का विकार, उसको खत्म करना अर्थात रावण को जलाना। रावण तो जला नहीं है, पुतला जला है, लेकिन हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर के पुराने संस्कार वो जिंदे, जिन्होंने रावण दसरा नवरात्रि ने नहीं मनाई, उसके लिए रावण नहीं मरेगा। और जिसने रावण को ही नहीं मारा, उसके लिए सतयुग कहाँ आएगा, सतयुग में वो कहाँ जाएगा, जा ही नहीं सकेगा। इसीलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नवरात्रि मनानी पड़ेगी, तब जाकर के दसरा होगा। और जिन्होंने दसरा मनाया उसके लिए दिवाली आ सकती है। தசரா அப்படின்னாலே அதுக்கப்புறம் தான் தீபாவளி வருகிறது.
எப்படி இந்த ஒவ்வொரு நாள் சிவராத்திரி தான் பவுண்டேஷன் சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து இந்த கணபதி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி, சுதந்திர தினம் அப்படி ஒன்னொன்னா சொன்னாங்க இல்லையா. இப்பொழுது நவராத்திரி, தசரா, அப்புறம் தீபாவளி. ஒவ்வொன்றையும் நாம தாரணை செய்து வெற்றி அடைந்து தசரா விஜயதசமி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டா அடுத்து தீபாவளி, தீப ஒளி, ஆத்ம தீபம் பிரகாசமாயிடும். उसके बीच में भी एक शायद राष्ट्रीय त्योहार, ये त्योहार की तरह क्रिकेट भी हुआ। आप लोग सबको पता होगा क्रिकेट का भी ये भी एक त्योहार है। खेल खेलना ये भी एक त्योहार है, ये भी संगम युग की यादगार है। और भारत का सबसे, भारत तो क्या सारी दुनिया का सबसे फेवरेट खेल है क्रिकेट। अभी भारत पाकिस्तान और खास तो भारत में विजय प्राप्त किया, एशिया कप वाला था, वो भी एक त्योहार ही है वास्तव में। எப்படி பாருங்க, கிரிக்கெட் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு, கிரிக்கெட் கேம்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு. அதுல பாரதம் பாகிஸ்தான், அதுல நம்ம பாரதம் ஜெயிச்சுடுது, கப்பு கிடைச்சிருது. அப்ப இது கூட எப்படி இருக்கு, நினைவு சின்னமா இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா பாரதம் தான் பொன்னான பாரதமா இருக்கும், பாரதம் தான் பகவான் வரக்கூடிய பூமி, பாரதத்துலதான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி, பாரதம் தான் சத்தியுகம் சொர்க்கம். அப்ப பாரதத்துக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் கிரிக்கெட் கேம்ஸ் நடக்குது, பாரதம் ஜெயிச்சிடுது, கப்பு கிடைச்சிடுது. கிரிக்கெட் கூட எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச மேட்சா இருக்கு। क्रिकेट में 3 स्टंप होते, 3 स्टंप, 3 स्टंप के ऊपर 2 गुली रखी जाती हैं। तो 2 गुली रखी जाते हैं और बॉलर क्या करता है, बॉल क्या करता है, डालता है, और वो बॉल आया हुआ बॉल बॉलर ने जो डाला है, अगर वो बॉल तीनों में से किसी को भी लग जाएगा तो आउट कहा जाता है। क्योंकि वो तीनों में से किसी को भी लग जाएगा, जो ऊपर जो गुली है वो गुली गिर जाते हैं, आउट कहेंगे। और बैट्समैन क्या करता है, जो बॉल आता है उसके बाद जो बैट है मजबूत, उसी के आधार से क्या करता है, वो बॉल को मारता है, छक्का मारता है, चौका मारता है एक भी, और उससे तीनों को बचाता है। उसको कैच पकड़ने नहीं देता, किसी को भी अपने शरीर को भी टच होने नहीं देता, और तीनों को जो 3 स्टंप है उससे बचाता है। इसको कहा जाता है क्रिकेट। கிரிக்கெட் இருக்கு, கிரிக்கெட்ல பால் போடுறாங்க, பாலை அடிக்கிறாங்க. அந்த 3 கம்பு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, 3 ஸ்தம்பம் இருக்கு. அந்த பால் போடுறாங்க, பால் அடிக்கிறாங்க, பால் போய் படுது. இப்படி நாம ஒவ்வொன்றுக்கும் நாம மாயா வரும்போது நாம எப்படி அடிக்கிறோம், நாம எப்படி வெற்றி அடைகிறோம், எதுல படுது, யார் நம்மை சுத்தி இருக்கிறாங்க, எல்லா விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல நாம கவனமா வெற்றி அடையக்கூடியவரா இருக்கணும்। 3 स्टंप अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 स्टंप है। उसके ऊपर आत्मा और परमात्मा 2 गुली है, 2 गुली है। तो माया क्या करते हैं, माया है बॉलर, वो विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, समस्याओं के, प्रॉब्लम के बॉल आपके ऊपर डालेगी, विभिन्न समस्या क्रिएट करेगी। और वो जब समस्या आते हैं हमारे मन में, उस समस्या के बारे में चिंतन चला, अरे ये मेरे साथ क्या हुआ, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, थोड़ा भी मन में आया तो भी आउट हो गया। क्योंकि जब मन में आया तो आत्मा परमात्मा 2 गुली अलग हो गए, हम परमात्मा से अलग हो गए तो आउट हो गए। तो ना मन में वो बात आए, ना वाचा में आए, किसी को जाकर शेयर करना, किसी को सुनाना, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, तो भी आपका आउट हो गया। या फिर कर्मना में भी आया, जिसने परिस्थिति निर्माण की, 15 दिन से बात नहीं किया, उसको बदवाई दी, उसके संकल्प चलाए, तो भी आउट हो गया। इसीलिए हमारे पास जो बाबा ने ज्ञान का बैट दिया है, ड्रामा का, कर्मों का जो हुआ, इस बैट के आधार से वो परिस्थिति रूपी बॉल को हमें क्या करना है, वापिस करना है, इतना मारना है जो हम बीच में रन बनाते रहे। वो ना वो परिस्थिति आपके चेहरे पर दिखाई ना पड़े, और कोई कैच भी ना पकड़े, ना आप उस परिस्थिति आने के बाद बॉडी कॉन्शियस में नहीं आए। ये है क्रिकेट। கிரிக்கெட்ல அந்த 3 ஸ்டம்ப் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 கம்பு வச்சிருக்காங்க, அதுல பால் போடுறாங்க, அந்த பாலை அடிக்கிறாங்க, வெற்றி அடையிறாங்க। நாம கூட மாயான்ற பாலை அடிக்க வேண்டும்। மாயான்ற பாலை ஞானம், பாபா கல்யாண்காரி, டிராமா கல்யாண்காரி, பாபா என்னெல்லாம் நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக ஞானம் கொடுத்திருக்காங்களோ, அந்த ஞானம், யோகம், சேவா, தாரணா, அப்ப பாபா நமக்கு எத்தனை கொடுத்திருக்காங்க, அந்த ஞானம் என்ற கம்பால் அந்த மாயா பாலை அடித்து வாபஸ் அதை நாம அடிச்சு மாயாஜி தாக வேண்டும்। அந்த 3 எதுக்காகன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மன்சா வாச்சா கர்மனா, அந்த 3 ஸ்டம்ப் எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, மனம், வார்த்தை, கர்மா,
நமக்கு பாபா சொல்லியிருக்காங்க உடல் மனம் பொருள் மனம் வார்த்தை கர்மாவால் என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க கூட பால் போடுறாங்க, பால் அடிக்கிறாங்க, வெற்றி அடைகிறாங்க, கப்பு வாங்குறாங்க. நாம கூட மாயா ஜீத் ஆகணும். பாபா ஞானத்தால் அந்த மாயாவை அடித்து மாயா ஜீத் ஆக வேண்டும். तो और क्रिकेट में केवल भाई नहीं, आजकल तो महिला भी क्रिकेट खेलती हैं। जिन्होंने संगम युग का क्रिकेट खेला, और मुझे लगता है इसमें से सबसे ज्यादा विजय कौन बनता है? ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा रन बनाता है। इसीलिए हर क्लब का मैन ऑफ द मैच ब्रह्मा बाबा है। பிரம்ம பாபா தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச். நம்பர் ஒன் கிரிக்கெட் வீரர் யாரு? மேன் ஆஃப் த மேட்ச் யாரு? பிரம்ம பாபா நம்பர் ஒன் வந்துடுறாங்க. விஸ்வ மகாராஜா ஆயிடுறாங்க, ஸ்ரீ நாராயண் ஆயிடுறாங்க, மாயா ஜீத் ஆயிடுறாங்க, ஜெகத் ஜீத் ஆயிடுறாங்க. तो देखो संगम युग में जो भी हमने कार्य किया, उसके त्योहार बन गए, रीति बन गए, रस्में बन गए, वार सप्ताह वार ये बन गए, सारा सब कुछ इसी से बन जाता है। कितने हमारा ऊंचा पाठ है संगम युग का। इसलिए संगम युग में हमें, अगर समझो ज्ञान सुनते सुनते या योग लगाते हम आंखें बंद कर लेते, उसका भी यादगार बन जाता है। उसका यादगार है धृतराष्ट्र। ஞானம் கேக்குறாங்க, யோகா சேவா தாரணா எல்லாம் லைஃப் லாங் பெர்மனன்ட் இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்ல கொஞ்ச நாள் தான் செய்யறாங்கன்னா, அதுதான் அந்த துரியோதனனோட அப்பா திருதராஷ்டிரர் சொல்லப்படுது இல்லையா, அவருக்கு கண்ணு தெரியாது அப்படி சொல்லப்படுது இல்லையா, அப்படி ஆயிடுறாங்க. யாரு ரெகுலர் செய்யல? திருதராஷ்டிரர், துரியோதனனோட அப்பா. யாரு ரெகுலர் செய்யறாங்க அவங்கதான் கரெக்ட். धृतराष्ट्र मतलब जैसे उसकी कहते हैं, उसकी माता जी, वो एक व्यास ये था। वो जब आया था दृष्टि देने के लिए, उस समय उसके माँ ने क्या किया, आंखें बंद कर दी। आंखें बंद की, इसीलिए कहा कि बच्चा तो पैदा हुआ होगा लेकिन अंधा। मना जब परमात्मा अभी नई दुनिया की रचना ये करने के लिए वो परम धाम से आता है, हमें दृष्टि देता है, उस समय हमने आंखें बंद की, दृष्टि ठीक नहीं ली, तो हमें ज्ञान है कि राइट है रॉन्ग है अच्छा है बुरा है, तो भी हम क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि योग की ताकत नहीं, पावर नहीं। इसलिए योग में हमें आंखें बंद नहीं करनी है। लेकिन पापा की केवल स्थूल आंखें की बात नहीं, बुद्धि रूपी आंख भी। तो देखो इसमें से सारे जितने भी संगम की बातें उसके टोटके बन जाते हैं, उसके फिर रामायण महाभारत भी बन जाता है। इसीलिए हमारा पाठ बहुत ऊंचा है, इसीलिए हमारे से ही सारे यादगार बन जाते हैं। इसीलिए हमें अटेंशन से अपना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। திருதராஷ்டிரர் துரியோதனனோட அப்பா, கண்ணு தெரியல. அப்போ யாரு லைஃப் லாங் ஞானம் யோகம் சேவா தேர்னா தெரியல, அவங்க துரியோதனன் அப்பா மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து அவங்க அம்மா இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க ஒய்ஃப் திருதராஷ்டிரோட ஒய்ஃப், அவங்களும் கண்ணை கட்டிக்குவாங்க, ஏன்னா இவருக்கு கண்ணு தெரியலன்னு. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, யாரு பகவானே இந்த பூமிக்கு அவதாரம் செய்து வந்துடுறாரு, திருஷ்டி கொடுக்குறாரு, யோகா ஞானம் எல்லாம் கொடுக்குறாரு, கண்ணு விழிச்சு யோகால பாபாவை பார்க்கணும், பாபாவை பார்க்கணும், பாபாவை நினைக்கணும், சக்தி வாங்கணும், ஜெயிக்கணும். யார் அப்படி பார்க்கல, கண்ணை மூடிக்கிடுறாங்க, அவங்களதான் அவங்க ஒய்ஃப் கண்ணை கட்டிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லப்படுது. तो इस तरह से नवरात्रि के बाद आता है, फिर अभी हम लोगों ने नवरात्रि मनाई, अब आने वाली है दसरा। दसरा, ये दसरे के बाद आएगा दिवाली। दिवाली दिवाली अर्थात आत्मा की ज्योति को जागृत करना, आत्मा को जागृत करना। जब हम सभी आत्मा रूपी दीपक निरंतर जागृत रहेगा, तो घर घर में लक्ष्मी आएगी। घर घर में अर्थात हर आत्मा जिनका दीपक जागृत है, वो सतयुग में संपन्न जगह पर जाएगा, जहां लक्ष्मी माना धन भरपूर होगा, वहां कोई कमी नहीं होगी, प्रकृति अच्छी होगी। वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दीपक को निरंतर जागृत रखना पड़ेगा। आत्मा का दीपक सदा और दीपक जागृत उसका होता है जो उसके अंदर ज्ञान का घृत डालता है, तेल डालता है। केवल तेल डालने से भी नहीं, स्मृति रूपी बाती भी चाहिए। अगर दिए में तेल है बाती नहीं, तो भी दीपक नहीं जलेगा। इसीलिए दिवाली मनाना अर्थात निरंतर आत्मिक स्थिति में, पावरफुल स्थिति में रहना, ये है सच्ची दिवाली। உண்மையான தீபாவளினா ஆத்ம ஜோதி பிரகாசமா இருக்கணும்.
உண்மையான தீபாவளி தீப ஒளி பிரகாசம், ஆத்ம தீபம் பிரகாசமா இருக்கணும். ஞானம் என்ற நெய், ஞானம் என்ற கீ, ஞானம் என்ற நெய் போட வேண்டும். நவராத்திரி, அடுத்து தசரா, அடுத்து தீபாவளி, ஆத்ம தீபத்தை பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டும். लेकिन भारत में क्या करते हैं, जैसे ये हो गया अभी दसरा हो गया, उसके बाद घरों की सफाई करना शुरू करते हैं। सफाई चालू हो गया। अभी 15 तारीख, माना 15 तारीख तक सारे घर ऑफिस सारा को लिपाई पुताई करके पुराना सारा वेस्ट सामान सारा निकाल देंगे, स्वच्छ घर करेंगे। क्यों? कहते हैं लक्ष्मी आने वाले हैं। वास्तव में हमारे अंदर जो कई मन के अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, कुछ भी जाली जलमटी गई भी गंदगी है, तब हम सतयुग में जहां लक्ष्मी चैतन्य में होंगी उस दुनिया में जा नहीं सकेंगे। इसीलिए चेक करो मेरे अंदर रावण को जलाने के बाद भी कोई जाली जलमटी, कोई विकार, कोई बुरा संस्कार तो नहीं है, उसको सफाई करना, ये है सच्ची दिवाली मनाना। எப்படி பாருங்க, தீபாவளிக்கு ஃபுல் வீடு கிளீன் பண்ணுவாங்க, ஃபுல் வீடு தூய்மையாக்குவாங்க. அத நான் ஒரு வார்த்தையில சொல்லிட்டேன், பாய்ஜி சொல்றாங்க 10 நாள் 15 நாள் 20 நாள் டைம் எடுத்து பண்ணுவாங்க. அப்படி லக்ஷ்மிய வெல்கம் பண்றாங்க. ஆதிலட்சுமி, அஷ்டலட்சுமி, அன்னலட்சுமி, தானியலட்சுமி, தனலட்சுமிய வெல்கம் பண்றாங்க, வீடை தூய்மையாக்குறாங்க. அப்படி நாம ஆத்மாவை, இந்த உடல் மனம் பொருள் ட்ரெஸ் எல்லாமே பியூரிட்டி பவித்ரதா அப்படி ஆக வேண்டும், லக்ஷ்மி ஆக வேண்டும். लेकिन दुनिया में क्या करते हैं, वो घर में दीपक लगाते हैं, लाइटिंग लगाएंगे। मुझे लगता है साउथ में, पता नहीं, मैं कभी आया नहीं दिवाली में, कभी एक बार मैं आने वाला हूँ दिवाली के समय, मैं देखूंगा सब। बाकी तो सभी स्टेट में मैं गया हूँ, दिवाली कैसे कैसे मनाते हैं वो सब देखा हुआ है। चाहे हिमाचल में गया हूँ, चाहे नेपाल में भी एक बार दिवाली मनाने के लिए। नेपाल में क्या करते हैं, दिवाली के समय दसरे में बहुत बड़ा तिलक लगाते हैं, इतना बड़ा तिलक होता है वहां। वो 5 उंगली मिला करके उसमें 7 अलग अलग दही डालते हैं, दही, चावल, गुड़, उसके बाद और पता नहीं क्या ये भी होता है एक कुंकम भी होता है, वो अलग टाइप का होता है। वो पूरा ऐसा यहाँ तक लगाते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि क्यों, कहते हैं रावण के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए हमारी आत्मिक स्थिति पावरफुल चाहिए, तब जाकर के रावण के ऊपर जीत प्राप्त। उसको चावल भी डालते हैं, ऐसा 7 चीजें डाल करके वो मनाया जाता है दिवाली और ये दसरा। और दिवाली में क्या करते हैं, वहां नेपाल में 7 कलर लगाते हैं। पहला सफेद लगाएंगे, उसके ऊपर फिर दूसरा कलर लगाएंगे, उसके ऊपर फिर बाद में ऐसा 7, और एक एक तिलक लगाते हैं 7 कलर का, अलग 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 7 कलर। ये आत्मा के 7 गुणों का प्रतीक है। जो आत्मा 7 गुणों के स्वरूप में रहते हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तब जाकर के हम रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते, विकार पर जीत प्राप्त कर सकते। ये है सच्ची हमारी दिवाली। எப்படி உண்மையான தீபாவளிக்கு ஒண்ணு வீட தூய்மையாக்குறாங்க, அப்புறம் லக்ஷ்மிய வெல்கம் பண்றாங்க. நாம கூட தூய்மையாகணும், லக்ஷ்மியா ஆகணும். அதே போல நம்மளுடைய ஆத்மால 7 குணங்கள் இருக்கு, அதை 7 கலராக தசரா அப்போ அந்த 7 திலகம் வைத்து, கலர் திலகம் வைத்து, 7 கலர் திலகம் வைத்து அவங்க செலிப்ரேட் பண்றாங்க நார்த் பக்கம். அப்ப நாம கூட அந்த 7 குணங்களை கொண்டு வந்துட்டோம்னா நாம எப்படி தேவதையாக முடியும்? அது அவங்க ஸ்தூலமா எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சிடுறாங்க, ஆத்மாவுக்கு தாரணை செய்யக்கூடிய விஷயம். अगर घर के ऊपर लाइट लगाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। आपके साउथ में पता नहीं क्या बोलते हैं, वो IL ऐसा कुछ ना, उल्लू बोलते हैं हिंदी में। तो उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अगर घर के ऊपर पूरा लाइट कराएंगे, दीपक जलाएंगे, तो उल्लू को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो लक्ष्मी को बिठा करके उल्लू कैसा आएगा? फिर फटाका बजाएंगे, फटाका बजाएगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो वास्तव में कौन सा दीपक की बात आई? आत्मा का दीपक जलाना, और तब जाकर के लक्ष्मी घर में आएंगे। ஆத்ம தீபத்தை எரிக்க வேண்டும், ஆத்ம தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும், ஆத்ம தீபம் பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா அந்த தீபம் ஏத்தி அவங்க தீபாவளி தீப ஒளினாலே தீபம் ஏற்றி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க நார்த் சைடு. அப்படி தீபம் ஏத்துறாங்க, அப்படி தீபம் ஏத்துறாங்க, லைட் போடுறாங்கன்னா பிரகாசம்,
அப்ப ஆத்ம தீபம் பிரகாசமாக வேண்டும். ஆத்ம தீபத்தை ஜகானா ஏற்ற வேண்டும். और दिवाली तो होती है आमोशा के दिन। आमोशा इसीलिए पूर्वजों ने रखा है, आमोशा में अंधेरा होता है, पूरा घना अंधेरा होता है। और ऐसे अंधेर में क्या होता है, परमात्मा आकर के आत्मा के दीपक जगाता है। अगर हम दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी ऊपर से कैसे आएगी? तो ये अंधकार में मतलब ऐसे समय पर परमात्मा करके आत्मा। और ये दिवाली का त्योहार हमारे यज्ञ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन हमारा यज्ञ की स्थापना दिवस भी है। தீபாவளி நாள் மிக மிக முக்கியமான நாள், மகத்துவமான நாள். ஏன்னா எகிய ஸ்தாபனைக்கான நாள். தீபாவளி நாள் மிக மிக மகத்துவமானது, முக்கியமானது. ஏனென்றால் பாபா பாப்தாதா எகிய ஸ்தாபனைக்கான நாள். तो इसलिए चेक करो हम दिवाली बनाने के लायक हो गए। तो बाप दादा हमेशा कहते थे मैं सच्ची दिवाली मनाना चाहता हूँ। सच्ची दिवाली अर्थात सब दीपक जगे हुए मैं अनुभव करना चाहता हूँ, और सच्चे आत्मिक स्थिति में रहना, यही सच्ची दिवाली है। உண்மையான தீபாவளி அப்படின்னாலே ஆத்ம தீபம் பிரகாசமாக வேண்டும். இதுதான் உண்மையான தீபாவளி. பாபாவுடைய யஜ்யம் ஸ்தாபனையான நாள். நாம் ஆத்ம தீபத்தை பிரகாசமாக செய்து லாயக்காக வேண்டும், தேவதா ஆக வேண்டும். सारे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा दिवाली मनाना लाश का त्योहार। क्योंकि जिन्होंने दिवाली मनाई, दिवाली अर्थात खुशियों का दिन, उसी समय मतलब मुझे लगता है भारत में एक महीने की हर स्टेट में, हमारे तो महाराष्ट्र में तो एक महीने का हमको छुट्टी रहती थी, छुट्टी का दिन रहता है। तो उसके बाद फिर नया वर्ष चालू हो जाता है, अर्थात सतयुग चालू। सब खाता भी अपना नया रखते हैं, नया वो जो पुराना सारे खाता है खत्म, नया साल भी शुरू हो जाता है तब से दिवाली। इसीलिए कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो वास्तव में आत्मिक स्थिति में रहना और विकारों को खत्म करना, यही हमारी सच्ची दिवाली है। உண்மையான தீபாவளினா ஆத்ம தீபம், ஆத்ம அபிமானி நிலை, அசரீரி, பவித்ரதா தாரணை, சாத் குண் எல்லா குண சர்வகுண சம்பன்ன தாரணை, லாயக்காகுவது, தேவதையாகுவது. அப்படி தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ண லாயக்கா, அப்படி தன்னை பார்க்க வேண்டும். लेकिन दिवाली वही मना सकता है जिसने दशहरा मनाया। अगर रावण को नहीं मारा, विकार को नहीं मारा, तो वो खुश नहीं रह सकता, आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। उसके लिए दिवाली ही नहीं है। जब दिवाली नहीं तो सतयुग में भी वो कैसा जा सकता है, उच्च पद कैसे प्राप्त कर सकता है? इसीलिए अभी भी आप दशहरा मनाओ अच्छी तरह। चेक करो दिवाली आने तक कहीं मेरे अंदर कहीं रावण तो नहीं रहा, रावण जिंदा तो नहीं है। तो इसलिए अभी भी नवरात्रि मना करके अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करो और निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना, यह है सच्ची दिवाली मनाना। ஆத்ம அபிமானியாக இருக்க வேண்டும். ஆத்ம தீபம் பிரகாசமா இருக்கணும். ஆத்ம அபிமானியா இருக்கணும். பவித்ரதா தாரணை இருக்கணும். குண தாரணை இருக்கணும். பாபாவிற்கு ரைட் ஹேண்ட் ஹெல்ப்பரா இருக்கணும். உண்மையான தசரா தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ண லாயக்கா இருக்கணும். इसलिए निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में इस दिवाली के समय हमें निरंतर क्या करना है? आत्मिक स्थिति में रहना है, बिल्कुल पावरफुल स्थिति में रहना है। आजकल जरूरी भी है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कितना सारा क्या क्या सारे देशों में आजकल हलचल चल रहे हैं। अर्थात दिवाली के समय क्या करते हैं? बॉम्ब भी पटाखे बजाना, मतलब विनाश। ये तो होना ही है दिवाली सबकी। इसीलिए अब हमारा कर्तव्य आत्मिक स्थिति में रह करके ऐसी आत्मा को सकाश देना, उनकी मनसा सेवा करना, उनको पावर देना, तब जाकर के दिवाली हम अच्छी तरह मना सकेंगे। खुशियों का अनुभव निरंतर हमें, केवल दिवाली नहीं, संगम युग ही हर दिन हमारे लिए दिवाली है। और मुझे लगता है हम जो महाराष्ट्र में थे, दिवाली के समय हम लौकिक में 8 दिन तक कभी खाना नहीं बनाते। खाना मतलब जो दाल चावल रोज का जो वो नहीं बनाते वहाँ महाराष्ट्र में। वो 8 दिन तक मिठाई खाते हैं। हाँ, सवेरे भी मिठाई खाएंगे, दोपहर को भी मिठाई खाएंगे, साथ में नमकीन भी रहता है, नमकीन मिठाई। वो 8 दिन तक चूल्हा जलाते ही नहीं है हम लोग।
और ये हमारा बचपन, मतलब बचपन में हम देखा हुआ है। और उसी दिन 4 बजे लौकिक बहनें हम लोगों को, भाइयों को क्या करते, वहां सिस्टम है, भाइयों को उठा करके उनको स्पेशल बहुत महंगा वाला तेल ला करके, तेल से क्या करते थे, उनको अच्छी तरह उनको तेल लगा करके, खुद बहनें, लौकिक बहनें क्या करते हैं, भाइयों को नहलाते हैं, नहला करके उनको आरती करते हैं, तिलक देते हैं, ये करते हैं। वास्तव में संगम युग में, ये संगम युग का यादगार है। हमारी बाबा क्या करता है, निमित्त बहनों को ये करके आत्मा रूपी भाइयों को सबको जगाता है। और सवेरे का नहा स्नान होता है, उस समय 3 या 4 बजे हम लोगों को उठाते थे लौकिक में। 3-4 बजे उठ कर गए, और जब जिस समय एक भाई नहाता है, उस समय सारे घर के लोग उठ जाते थे 4 बजे। 4 बजे उठ कर गए सब उनको, और गर्म पानी, पानी भी ठंडा नहीं होते, गरम गरम पानी स्पेशल। और उसके बाद साबुन भी बहुत महंगा से महंगा, भले गरीब भी है, लेकिन उसी दिन दिवाली के समय बहुत महंगा साबुन, बहुत महंगा अच्छी तरह तेल लाते थे। वो तेल सभी बहने, कितना भी भाई बड़ा हो तो भी क्या करते थे, बहने सबके शरीर को लगा करके, फिर अपना हाथ से साबुन लगा करके नेल। और उस समय दूसरे भाई जो खाली है, फ्री है, वो फटाके बजा करके उसकी खुशियां मनाते थे। वास्तव में संगम युग में परमात्मा क्या करता है, बहनों को निमित्त बना करके ज्ञान का स्नान कराता है। ये ज्ञान का स्नान करा करके, ज्ञान का साबुन लगा करके आत्माओं को स्वच्छ बनाता है, उसका ये। और मिठाई खाना, मतलब ज्ञान की मिठाई खाना, उसके लिए दिवाली है। ये है दिवाली का त्योहार। இப்படி பாருங்க, தீபாவளிக்கு எண்ணெய் வச்சு குளிக்கிறோம், அடுத்து புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம், அடுத்து ஸ்வீட் சாப்பிடுறோம். அதற்கு முன்னாடியே வீட்டை தூய்மையாக்கணும், ரெடி ஆக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. ஒரு நாளைக்கான விஷயம் இல்ல, ஒரு வாரம் 2 வாரத்துக்கான விஷயம், அதையும் சொன்னாங்க. பாபா அதாவது லக்ஷ்மிய வெல்கம் பண்றாங்க. அப்படி பிரதரோட அனுபவம், பகவான் பாய்ஜியோட அனுபவம் லௌகீக்ல, அந்த 8 நாளும் 10-15 நாள் வீட்டை நீட் பண்றது, 8 நாளும் தினம் தினம் சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்களாம். தோழி, நம்கின், தோழி, ஸ்வீட்டு, மிட்டாய் இப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். அப்போ எப்படியெல்லாம் அவங்க செலிப்ரேட் பண்றாங்க. நாம கூட சங்கம யுகத்தோட நினைவு சின்னம் ஆத்மா, நிரந்தர ஆத்ம அபிமானி நிலை, நிரந்தர ஆத்ம அபிமானி நிலை, ஆத்மா பிரகாசம், ஆத்மாவுக்கு நெய் போடணும். அப்படி பாபா நம்ம என்ன பண்றாரா, இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறோம் இல்லையா, நம்மள 3-4 மணிக்கு எழுப்பி விட்டுடுறாரு. நம்ம ஸ்நானம் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸ்தூலமா ஆத்மாவ. மேலும் பாபா சோப் போட்டு பாபா சொல்லுவாங்க, நான் துவைக்கிறதுக்காகவே வந்திருக்கேன், தூய்மையாக்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படி நம்மளுக்கு பாபா ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நம்மள ஸ்நானம் பண்ண வச்சு ரெடியாக்கி நியூ ட்ரெஸ் போட்டு, ஒயிட் ட்ரெஸ், பாபா பேட்ஜ் எல்லாம் போட்டு நல்லா ஸ்வீட் சாப்பிடுறோம். இது எல்லாமே அவங்க 1 வாரம் 10 நாள் 15 நாள் நார்த் சைடு செலிப்ரேட் பண்றாங்க. நாம ஆத்மாவுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணணும். நமக்கு கூட பாபா செய்ய வைக்கிறாங்க, எழுப்பி விடுறாங்க, ஸ்நானம் பண்ண வைக்கிறாங்க, ஆத்மாவுக்கு சக்தி கொடுக்குறாங்க, ஆத்மாவுக்கு நெய் கொடுக்குறாங்க, ஆத்மாவை தூய்மையாக்குறாங்க. பாபா டோலி கொடுக்குறாங்க, பாபா டோலி கொடுக்குறாங்க, பாபா பிரம்மா போஜன் கொடுக்குறாங்க. அப்ப பாபாவுக்கு நாம நிரந்தர ஆத்மா அபிமானியாகி பவித்திரதா தாரணை செய்து பாபாவோட ரைட் ஹேண்டா இருக்கும். तो इस तरह से ये त्योहार ऐसे आपको दिवाली की बहुत बहुत कहते हैं ना, हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली तब है जब आपका दीपक जगा हुआ है, आप रोज ज्ञान स्नान करते हैं, ज्ञान की मिठाई खाते हैं, हाँ, आप सदा निर्विघ्न रहते हैं, तब आपके जीवन में हैप्पी दिवाली। जिसकी हैप्पी दिवाली है संगम युग में, वो ही सतयुग में उसका पद ऊंचा है, उसका स्टेटस ऊंचा है। तो ऐसे आप लोगों की दिवाली की मुबारक। अपना दीपक सदा जागृत रखना, तो रोज तेल डालना भूलना नहीं, नहीं तो अगर तेल नहीं डालेंगे तो दीपक जल्दी बुझ जाएगा। संगम युग जब तक है, रोज हमें तेल डालते रहना और दीपक जागृत रखना। ये पूरा संगम युग हमारे लिए दिवाली है। ठीक है, ऐसे दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत। तो ऐसे एक एक त्योहार के अंदर बहुत सारा आध्यात्मिक रहस्य है। ठीक है, ओम शांति। பகவான் பாய்ஜி சொல்றாங்க, நமக்கு
ஆத்மா நெய் போட்டு பிரகாசமா இருக்கணும். ஆத்மாவுக்கு தினம் தினம் நெய், ஞானம் என்ற நெய், யோகா சேவா தாரணா ஞானம் என்ற நெய் கீ போட்டு ஆத்மா பிரகாசமா இருக்கணும். நிரந்தர ஆத்ம அபிமானி நிலை இருக்கணும். ஆத்ம தீபம் தான் உண்மையான தீபாவளி. பகவான் பாய்ஜி நம்ம எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படி சொல்றாங்க. भाईजी स्वयं भगवान भी दीप को जगाना, मास्टर गार्ड भी मेरा साथ है, भगवान भाई जी का मुबारक भी मेरा साथ है, आपको बहुत 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 दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और दिवाली में कुछ दीपक भी जगाना भी होता है, ऐसा नहीं कि हमने कितने दीपक जलाए हैं, वो भी महत्व का। हम लोग गुलजार दादी क्या कराती थी, एक खेल कराती थी दिवाली के समय। तो गुलजार दादी क्या करती थी, पार्क में एक लाइन इधर खड़े रखते थे और दीपक जलाकर दादी देती थी, और दादी कहती थी मुझे बजेगा, और उधर दूर कुछ बुझे हुए दीपक रहते थे, बुझे हुए दीपक रहते थे। तो दादी कहती थी फास्ट में जाना है, अपना दीपक जला करके, दीपक जला करके फास्ट में जाना है, और दीपक को जितना भी आप जला करके लाना चाहते हैं ला सकते हैं। दीपक को जला करके वो अपना भी दीपक जागृत करके आना है, और दूसरे दीपक को जागृत करके जगा करके वो भी उठा कर लेके आना है। जो जल्दी आएगा वो फर्स्ट नंबर। तो कभी कभी क्या होता था, हम जब जाते थे फास्ट में जाने से हवा लगती थी तो दीपक बुझ जाता था। जब खुद का दीपक बुझा हुआ है तो जाकर के दूसरे का कैसे, दुनिया में जाकर के दूसरे को कैसे जगा सकते हैं। इसीलिए अपना बिल्कुल जागृत करके, आंधी तो मतलब हवा से बचाना है, और वहां जाकर के जगह। तो कभी कभी आते समय क्या होता था, खुद का बुझा हुआ और दूसरा जिसको ला रहा है वो जगह। तो कभी कभी हम ज्ञान में चलते समय क्या होता है, फील्ड में किसी को सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी खुद की स्थिति बिगड़ जाते हैं और दूसरे की हम सेवा करते हैं। दादी कहते हैं नहीं वो फेल हो गया। इसलिए हमें बाहर अपना दीपक भी जागृत कर रखना है, और साथ में अन्य दीपक को जागृत करके उनको मधुवन तक उनको भी पहुंचाना है, तब जाकर के आप विजय हो गए। इस तरह से बहुत खेल कराते थे दादी जी, वो याद आए दिवाली के समय। குல்சார் தாதிஜி ஒரு கேம்ஸ் பண்ணுவாங்களாம். குல்சார் தாதிஜி ஒரு கேம்ஸ் பண்ணுவாங்களாம், கையில தீபம் வச்சுக்குவாங்களாம். அதே போல அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் தூரமா ஒரு பார்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க ஒரு தாதிஜி அப்படியே வச்சுக்குவோமே, அவங்க கையில தீபம் வச்சிருக்காங்க. இப்போ நாம 2 பேருமே நடந்து வேகமா வரணும். பாபா கிட்ட வந்தாலும் சரி, தாதி கிட்ட வந்தாலும் சரி, தீபம் அணையக்கூடாது, தீபமும் இருக்கணும், காற்றுல அணையக்கூடாது. நாம யார் ஃபர்ஸ்ட்ல வர்றோமோ அப்ப தீபத்தையும் பாத்துக்கணும், நாம ஃபர்ஸ்ட்லயும் வரணும். அப்ப ஆத்ம தீபம் பிரகாசமாக இருந்தால் தானே நாம வெற்றி அடைய முடியும். யாரு தன்னோட தீபத்தையே சேஃப்டியா பாத்துக்கிறாங்க அவங்க தானே பிறருக்கு உதவி செய்ய முடியும். இப்படி எல்லாம் கேம்ஸ் வச்சு விளையாடுவாங்களாம். तो अगर आप लोगों को भी भविष्य की राजाई लेनी है तो आप भी चेक करो कि इस संगम युग में आज तक मैंने कितने दीपक जलाए, या मेरा ही बुझा हुआ है। तो वो दिवाली क्या मना सकते हैं, उसके जीवन में खुशियां कैसे हो सकते हैं। इसलिए अनेक दीपकों, कहते हैं ना, दीपक से दीपक जगाते चलो, हाँ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, हाँ, अंधकार मिटाते चलो। यही हमारे इस ज्ञान का राज है। तो ये ऐसी दिवाली मनाना, इसी के साथ धन्यवाद। और जो ऐसा जिसका दीपक जागृत है उसकी खुशियां कभी कम नहीं होगी। और मिठाई तो क्या, दुनिया वाली मिठाई नहीं, वो मिठाई खाएंगे तो शुगर पेशेंट हो जाएगा। ये खुशी की मिठाई खाना, सदा खुश रहना। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। इसलिए सदा खुश रहना यही सच्ची दिवाली है। लेकिन खुश वही रह सकता है जिसका दीपक जागृत है। दीपक जागृत रहने के लिए रावण को मारना पड़ेगा, नवरात्रि मनानी पड़ेगी, राखी बांधनी पड़ेगी, बाकी त्योहार मनाना पड़ेगा, तब दिवाली होगी। ओम शांति। நமக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க, விஷயம் சொன்னாங்க. சிவராத்திரி வந்துருது, ராக்கி வந்துருது, சுதந்திரம் வந்துருது, கிருஷ்ண ஜெயந்தி வந்துருது, கணபதி விக்ன விநாசக், இப்படி ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்க. அப்படி இப்ப நம்ம ஹாப்பி தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஹாப்பி தீபாவளி, அந்த ஸ்வீட் சாப்பிடணும். அந்த உலகத்துல இருக்கிற மிட்டாய்னா சுகர் கொண்டு வந்துரும். நாம ஹாப்பி, ஆத்மாவுக்கான ஹாப்பி, ஆத்மாவுக்கான ஸ்வீட், ஆத்மாவுக்கான வேல்யூஸ்,
ஜோதி பிரகாசமா இருக்கணும். நாம அப்படி எதிர்காலத்துல ஃபியூச்சர்ல சத்தியுகத்துல ராஜ்யத்துல பாபா கூட வரணும். அப்ப ஆத்ம தீபம் பிரகாசமா இருக்கணும். அதுக்காக பகவான் பாய்ஜி நமக்கு ஹாப்பி தீபாவளி சொல்றாங்க. பாய்ஜிக்கு பகுத் 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 தன்யவாத். धन्यवाद। ஓம் சக்தி சிஸ்டர். பிரதர் ஓம் வந்து இன்னைக்கு திருவிழாக்களின் திருநாளா ஆக்கிட்டாரு இன்றைய நாள. உம் எத்தனை திருவிழாக்கள் கொண்டாடினாலும் இவ்வளவு தொகுத்து அது ரிலேட்டடா இவ்வளவு அழகான ஒரு வகுப்பை நமக்கு தந்து தீபாவளியோட உற்சாகத்தை இப்பயே நம்மளுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாரு. அந்த தீபாவளிக்கு என்ன भाईजी செய்யணும்? आज हाँ जी, आपका क्लास त्योहरा का दिन, ऐसा माता जी ने बोला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैंने ये हम लोग चिंतन करते तो बड़ा खुशी हो जाते है कि दुनिया में देखो मना रहे, लेकिन हमको बाबा ने ऐसा बना दिया, वो बहुत खुशी हाँ रहते। अब அவங்க इतना दिन हम क्या செலிப்ரேட் करते थे, பண்றாங்க। माला माला क्या करते थे, जपते थे। हमें माला जपना नहीं है, लेकिन माले के अंदर का मन का बनना है। உம் அவங்க செலிப்ரேட் பண்றாங்க, கொண்டாடுறாங்க. நாம பண்ணாகே ஆக வேண்டும். அவங்க செலிப்ரேட் பண்றாங்க, இப்ப தேவதைய கொண்டாடுறாங்க. செலிப்ரேட் பண்ண நாம தேவதை ஆக வேண்டும். அப்படி பண்ணாகே. Yes, கண்டிப்பாக பிரதர் சொன்னது மாதிரி கேட்கும் போதே ஒரு உற்சாகம், ஒரு குஷி எல்லாமே வருது. இந்த உம் அற்புதமான வகுப்பை தந்து நமது அன்பு சகோதரருக்கு நிறைய நன்றி சொல்லிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாபாவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கலாம். பிரதர் எதுவும் கமெண்ட் தருவாங்களா இல்ல நம்ம பாட்டு போடணுமா சிஸ்டர்? இல்ல பாட்டு साउथ में போட்டுருங்க। तो पोंगल पोंगल दिवाली, आपके पास तो दिवाली पोंगल होता है। 14 तारीख को ஆஹ் हमने पोंगल भी मना के आया हूँ। पोंगल ஆஹ் भी संगम का प्रतीक है। वो गन्ना ஆஹ் गन्ना वगैरह, गन्ना फिर रंगोली डालते हैं, ये सब देखा वो। ஆஹ் हर एक के घर के सामने वो रंगोली डालते हैं, गन्ना वो ஆஹ் खाने का सिस्टम है सब। பொங்கல் ரங்கோலி ரங்கோலி கோலம் போடுறீங்க, கரும்பு हम तो வச்சிருக்கீங்க पोंगल में பொங்கல்। गन्ना, मैं तो गन्ना एक बोरी भर करके लेके आता था ஆஹ் मधुबन के लिए। तो ஆஹ் वहां आते समय रास्ते में खाते हुए आते थे, वहां का गन्ना बड़ा ஆஹ் अच्छा लगता है, काला वाला ஆஹ் गन्ना। और वो तो கன்யா खास கன்னா में 14 जनवरी में आपका ஆஹ் पोंगल फिक्स है, 14 जनवरी। ஆஹ் அந்த ஜனவரி 14க்கு நம்ம என்ன பண்றோம், பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்றோம், கரும்பு சாப்பிடுறோம். அந்த கரும்பு ஸ்வீட் பானி கரும்பு சாப்பிடுறோம். ரங்கோலி கோலம் போடுறோம், அதெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லையா? அத பத்தி கூட அடுத்தடுத்து சொல்லுவாங்க। नेक्स्ट क्लास में पोंगल का त्योहार हाँ देखेंगे, मैं के अभी बारे में। बाहर जाने वाला हूँ। ओ नहीं, यहाँ होगा तो देखेंगे तो उसमें ठीक है। थैंक यू अभी भाई तो जी, मैं थैंक एक महीना वहाँ इसमें था, असम में था। अभी ओ तो असम से आया हूँ, हाँ, इसीलिए मुझे लगता है मैं पहला क्लास किया था दादी डे 25 तारीख को किया था, उसके बाद अभी किया हूँ। एक महीने के लिए हम्म बाहर गया था। अभी तो मधुबन में हूँ। बाबा ने कहा मन जीत जगत जीत, माया जीत जगत जीत। हाँ हाँ। मंजीत माना शुभ भावना, एक ही शुभ भावना। माया जीत माना पवित्रता धारण। करेक्टा भाई जी? भगवान भाई जी। பிரதருக்கு நெட்வொர்க் இல்ல போல இருக்கு, அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லா இருக்காங்க, ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஆமா, கேட்கல। கேட்கல போல. ஓகே, ओके, ओम शांति। நம்ம ஓம் சாந்தி। தேங்க்யூ மாதாஜி। தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வந்து நம்ம நன்றி சொல்லிக்கலாம். இப்போ ஒரு நிமிஷம் நம்ம சைலண்ட்ல இருந்துட்டு வகுப்பு நிறைவு பண்ணிக்கலாமா சிஸ்டர்? ஓகே பாபாவுக்கு நிறைய இந்த அழகான வகுப்பை தந்த நமது அன்பு भाई சகோதரருக்கும் जी, थैंक यू भाई जी। ஒரு थैंक நிமிஷம் यू। சைலண்ட்ல இருக்கு, ஒரு நிமிஷம். ஓம் சாந்தி. இன்றைக்கு வந்து பண்டிகைகளால இன்றைய நாளையும் அந்த பண்டிகையின் உற்சாகத்தால் நம் மனதை நிறைத்த நமது அன்பு சகோதரர், நமது பாபா அதற்காக நிமித்தமா வச்சிருந்த நமது அன்பு சகோதரருக்கும், டிரான்ஸ்லேட் செய்த நமது அன்பு சகோதரி
நன்றிகள் பல கூறி மேடை அலங்கரித்த அனைவருக்கும் நன்றிகள் கூறி இன்றைய வகுப்பு இத்தோடு நிறைவு பெறுகிறது. நாளை மீண்டும் இதே வகுப்பறையில் வேறொரு கருவியோடு சந்திக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு நைட்டு வந்து அவ்வியக்தவாணி இருக்கு, தவறாம எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க. அதனுடைய பலனை முழுமையா எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு ஜான்சி சிஸ்டர் கிளாஸ், எல்லோரும் கலந்துக்கோங்க. இந்த அழகான வகுப்பை தந்தா நமது அன்பு சகோதரருக்கு நிறைய நிறைய நன்றிகள் சொல்லிக்கலாம். அனைவருக்கும் நன்றிகள். சிஸ்டர் வகுப்பு நிறைவு பண்ணிக்கலாமா? ரேஷ்மி சிஸ்டர் இருக்கீங்களா? ஓகே. ஓம் சாந்தி பிரதர். स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। माया का संसार पुराना जाने वाला है। सतयुग का वो पहला प्रिंस सबसे सुंदर गोरा है, कंचन काया वाला कृष्णा मीठा और भोला है। ज्ञान का माखन खाकर उसने स्वर्ग का माखन खाया है, काले से वो गोरा बनकर स्वर्ग हाथ में लाया है। संगम युग का मुरलीधर सतयुग लाने वाला है, चलने की अब करो तैयारी, कृष्ण आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले रोज मुरली सुनते हैं, वो तकदीरवान हैं जो सागर मंथन करते हैं। ज्ञान रतन के सागर से वो हीरे मोती चुगते हैं, कृष्णपुरी में चलने की वो तैयारी करते हैं। परिस्तान ये भारत फिर से बनने वाला है, मेरे पन का त्याग कर दो, स्वर्ग आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है,